Professor Dr. Khaliqur Rahman is an honorable commission member of Punjab Higher Education Commission. He was the 28th head of the Government College University Lahore. He completed his PhD in physics from University of Manchester, UK. Professor Dr. Khaliqur Rahman is an illustrious physicist with over 40 years of teaching and administrative experience in various capacities. Currently, he is working as rector of Green International University, Lahore. He also remained associated with Beacon House Educational System as advisor. He taught at the Department of Physics, University of Engineering and Technology, Lahore for 37 years, where he also served as chairperson for a very long time. The President of Pakistan conferred upon him to the prestigious Azaz-e-Kamal in the education sector on account of his overall academic distinction for the year 2009. He has a long list of professional accomplishments. Now, I would request Professor Dr. Khaliqur Rahman Saab to kindly start the session, sir. Sir, over to you, sir. Thank you, Ji. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I'm really thankful to the Punjab Higher Education Commission also for arranging this very wonderful training program for the young faculty members of the universities. I really appreciate the efforts of the Commission, Chairman Dr. Fazle Khalid Saab, and you, as Asif Munir Saab, aapka bhi, you have taken a lot of effort for organizing this conference. So basically, the philosophy of this conference, arranging this training program, is very clear, that to provide them the opportunity to the young faculty to know how to act as a university teacher. And I'm saying how to act as a university teacher, that means the universities are different institution in the sense where you are going to train the youth of the country in a variety of programs with keeping up the all international standards in mind, and also providing the opportunity to the people coming from different parts of the countries to share their views and to fulfill their obligations as a student. And at the same time, the teacher has to also perform in such a way that they can transfer their knowledge along with the personality development of the youth, which is a very big issue at the moment. And on the other side also, when we recruit the faculty, we expect certain responsibilities to be taken up by the faculty members. So keeping that in view, I have made a small presentation. Maybe I will be trying to put forward this presentation to you all participants and welcoming there in my talk. This actually gives you the small representation how the life goes and how the university teacher. I will try to embed the requirement of the university teachers in this issue. So first of all, the talk obviously deal with the main areas: leadership and motivation. And how to keep body language positive in a tough work environment. Why I have chosen this topic? Because until unless you all know this very fact, healthy mind जो है वो एक healthy personality को generate करता है. So keeping that in mind, we have given the emphasis to the fact that one has to be in a position to represent herself or himself before the students in a very good environment, having its own lively personality along with the positivity which he or she must have in his or her. His जहर कहूँ तो kindly take it for in their same sense कि it's applicable to both the men and women. So the main problem which we are facing nowadays is that the definition of a teacher. Most of us exactly don't describe what is a teacher, especially in terms of a university teacher. When we ask somebody how to define university, they all say to get the degree. This is not a university. In fact, university is defined in a very precise way. That is the institution where there are junior scholars called as students, and at the same time there are senior scholars which are regarded as faculty members. The role of administration is to facilitate them
both to the faculty members and the students in a good and very congenial environment to get the knowledge in a latest way and to facilitate them for achieving their aims and objects for which the students are getting admission in the institutions. That factor for a university is very important. So all universities are defined in this mode that only the faculty members and students are the stakeholders in a university. In our country, this feeling is also getting very popular, and this is the reason why we call the universities should be autonomous. Autonomous can only be enjoyed when the faculty member have this realization in a great sense that they must be very conversant with the teaching methodologies. They must be very concerted with the rules and regulations under which the universities are to be run and how the law have been provided to the universities for their smooth functioning. And at the same time, they must have such a personality development that along with the knowledge, they should be able to provide the opportunity to the student to shape and grind their personalities. For this shaping and grinding of the young lot has to be done by the faculty member. So they have to copy, the students has to copy the teacher, how he or she is delivering the lecture, how she or he is posing himself or herself in a very, very good environment, how the vision is being transferred by the faculty member towards the students, in what form and in what way. And very important is that of the feeling which the students must get from the teacher, that is a university teacher. When I say teacher, mean a university teacher. So that he is not only having a sympathetic attitude, but must demonstrate empathy also. I hope you all people must be knowing the difference between sympathy and empathy. Very, very, just for those who may not be familiar with this terminology, what is empathy is? Empathy nowadays is becoming a very popular uh, phrase in many professions. So very simple example can be demonstrated that, say, if you are a pilot, you are flying an aeroplane and you are going to meet an emergency situation. So as a pilot, you are announcing that we are in a trouble. So that is you will be expressing sympathy with the passengers that definitely we will try our best to overcome this difficulty, this emergency, and all your staff under you, there is the cabin crew and all this will be definitely busy for consoling them, for telling them, don't worry. मैं थोड़ा सा उर्दू बोलूंगा ताकि कुछ दोस्तों को ये भी समझ आ जाए हमारी ग्राउंड रियलिटीज में कैसे होगा, उनके साथ सिंपैथी शो कर रहे होंगे. तो ये तो है सिंपैथी. लेकिन अगर सिचुएशन ज्यादा से ज्यादा वर्सन हो रही है तो व्हाट विल हैपन, द पायलट विल कम आउट ऑफ हिज केबिन और विल ट्राई टू शेयर, से मदर इज हैविंग हर किड्स विद हिम, उसको कैसे डील करना है. इन ओल्ड कपल इज सिटिंग देयर, सो मेनी टाइप ऑफ पैसेंजर्स विल बी देयर इन एन एरोप्लेन. यहाँ पे इनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट जो होगी पायलट की टू देयर सेंटिमेंट्स is called empathy. See yourself that you are also involved in this same situation. क्योंकि every passenger will have got its own situation. तो इस चीज को हम कहते हैं empathy. So this has to be applicable to a university faculty member also. The job of a faculty member is not only to come out with a lecture prepared in a very good way. I know most of the teachers, they prepared a lecture in a very good way, but then you have to be very cautious how the students' response is there, how the class of 40 or 40, 50 boys and girls are sitting before you, how they are behaving, in what mode they are. This has to be inculcated in yourself. So that the main aim of training is to how your personality should be developed as you have now been recruited by the universities for as a university teacher. So that empathy part must be there.
So this is actually lacking at the moment. They don't care. They say we are not responsible. What is happening? Blame शुरू कर देंगे, blame game towards the government ऐसे कर रही है, यूनिवर्सिटी के पास resources नहीं, तो वो तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं होगा. जैसे मैंने पायलट की एग्जांपल दी, they will be interested in their own situation. So that can only be tackled by a teacher who know the meaning of empathy. तो उसको इस सिचुएशन में लाने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे. आई अंडरस्टैंड, जो मैंने ये पर्टिकुलर ये टॉपिक रखा है कि हाउ टू कीप बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव इन टफ वर्क एनवायरनमेंट. तो टफ वर्क एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स प्रॉब्लम से लेके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड अदर many problems are there which you have to encounter in your life as a university teacher. So before starting this, I say the teacher, I'm very much convinced, and I always talk about this, there can only be two type of teachers. One is by choice or by chance. तो definitely आपको by choice में आना चाहिए. अब अगर किसी भी रीजन से आपने इस प्रोफेशन को चूज कर लिया है, तो डेफिनेटली फिर इसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करें और ट्राई टू प्रिपेयर योरसेल्फ. जो हमारा भी एम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो PHEC का है, I have been also honored to be the member of that. Various initiatives भी मैं आपको बताए जाएंगे कि PHEC ने कितने initiatives लिए हैं for the faculty members of the universities and even colleges. तो आपको क्लियर होगा कि वही ले सकते हैं जो खुद इस सिस्टम में इन्वॉल्व रहे हैं. तो इससे इसकी इंपॉर्टेंस को समझे कि यूनिवर्सिटीज हैव टू बी रन बाय द यूनिवर्सिटी टीचर्स. ये बहुत बड़ा फैक्ट मैं आपको बयान कर रहा हूँ, और आप अखबारों में पढ़ते हैं तो कोई किसी को बॉदर नहीं करेगा अनटिल वो कम्युनिटी खुद अपने आप को कैपेबिलिटी की तरफ लाए, अपनी कैपेबिलिटीज को इन्हांस करे, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करे, तो तभी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो रन हो सकती हैं. तो इस फैक्टर्स को ज़हन में रखें कि नाउ यू आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी कम्युनिटी, तो यू हैव टू prepare your personality in such a way. Definitely it will take time. You should try to behave as a university teacher, and by choice mean you will not only be worried कि गाड़ी का टाइम देखना है कि 8 बजे से 4 बज गए हैं, तो अब हमें कितनी जल्दी हो मैं घर जाना है. यूनिवर्सिटी टीचर को आपको पता है यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन में नॉलेज क्रिएशन शामिल है. तो नॉलेज क्रिएशन जो है वो कब आती है? जब आप नॉलेज जानते हैं तो आप न्यू नॉलेज क्रिएट करते हैं. जैसे अभी आपको पता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, डेली बेसिस पे डेवलपमेंट्स इतनी फास्टली हो रही हैं, उन सबको कोप करने के लिए वन मस्ट हैव ए चॉइस कि मैं यूनिवर्सिटी टीचर बन रहा हूँ बाय चॉइस. तो ही और शी हैज टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम फॉर परफॉर्मिंग द ड्यूटी. यही हम वर्कलोड कैलकुलेट करेंगे, अच्छा जी फलाने का 4 आवर्स हो गया, मेरा क्यों 6 आवर्स है. तो आपको चॉइस में है आप, तो यू विल डेफिनेटली volunteer, you will take part in other activities than the teaching. सिर्फ टीचिंग आपका नहीं होगा, that must be a passion, but आपकी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हाउ टू रन ये यूनिवर्सिटी, आपके फाइनेंशियल इश्यूज जो यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं उसको भी आप लोगों ने टैकल करना है. तो काइंडली मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप यंग हैं, यू आर एज ए लेक्चरर और एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आ रहे हैं, ट्राई टू रियलाइज दिस फैक्ट दैट यू हैव टू रन द यूनिवर्सिटी योरसेल्फ. आप ही में से प्रोफेसर बनने हैं, आप ही में से डीन बनने, आप ही में से वाइस चांसलर बनने, कोई तो हमारे लिए कर रहा है. मैं आई एम वेरी मच क्लियर कि शायद मेरा चॉइस में शायद रिग्रेट करता है एट द एंड ऑफ द कैरियर, लेकिन मेरे बड़े जो थे, मेरे जो सीनियर्स थे, उन्होंने बहुत कुछ किया, नॉट ओनली फॉर माई यूनिवर्सिटी बल्कि और जो यूनिवर्सिटीज की पाकिस्तान की थी उनके टीचरों ने भी बहुत, मैंने विटनेस किया है कि उन्हें हाउ दे हैव मेड आवर लाइफ इजी, और किस तरह उन्होंने दिन रात काम करके किया. इट्स वेरी इजी कि आप उसको कह दें कि जनाब बड़ियाँ बुराइयाँ हैं, जैसे हम यूजुअली पाकिस्तान की बुराइयाँ शुरू करते हैं और करते करते फिर हम यूनिवर्सिटी से आ सकते हैं और इस फैक्ट को भूल जाते हैं कि हमारे टीचर्स ने, मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स ने कैसे रोल प्ले किया था टू ट्रेन अस, टू प्रिपेयर अस फॉर द फ्यूचरिस्टिक चैलेंजेस. इस चीज को काइंडली जहन में लाएं. अब आप इस प्रोफेशन में आ गए हैं तो आपने खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसका एहसास करना है, उसे अपने बिल्डअप करना है, एंड दिस इज द टास्क ऑफ एन इंडिविजुअल. हम तो यही एफर्ट कर सकते हैं, या गवर्नमेंट यही एफर्ट कर सकती, कमीशन भी यही एफर्ट कर सकते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, आपको इंटरेक्शन करवाई जाए ऐसे लोगों से जिनकी अपनी सक्सेस स्टोरी है. व्हाई दे केम एज ए यूनिवर्सिटी टीचर बाय चॉइस एंड हाउ दे हैव ट्राइड टू कंट्रीब्यूट इन ए गुड वे. हम मीडिया फ्रेंड्ली हो चुके हैं, हम समझते सब कुछ मीडिया पे है, तो मैं समझता हूँ मीडिया की अपनी इंपॉर्टेंस है.
वो हम इसको निगेट नहीं करते, बट ऑन द अदर साइड प्रोफेशनल साइड पे यूनिवर्सिटी टीचर्स को आपस में इंटरेक्शन बढ़ानी है। तो ये पहला स्टेप है और इम्पोर्टेंट स्टेप है जो कमीशन ने लिया है, जिसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ कि हमें आपके इस, हम रिवायती ट्रेनिंग की बजाय हम इस तरह की ट्रेनिंग को भी ज्यादा प्रेफर करने जा रहे हैं जहाँ इंटरेक्टिव हो। तो आपको कोई इशू आए, कोई इस टॉक के बारे में, इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा इस टॉक के अंदर आपको जो है ना खासा कुछ लीडरशिप और मोटिवेशन के बारे में बता दूं कि कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट करना है और कैसे आपने यूनिवर्सिटी लाइफ को गुजारना है, और कैसे यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अभी माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटीज ग्रो कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं परेशानी की, लेकिन इशू ये है कि हम खुद अपने आप को तैयार, हम कहते हैं जी सारी चीज गवर्नमेंट ही करे, जैसे सिविक सेंस हमारे पास है, हम कहते हैं जी हमारी घर का जो सामना हिस्सा है जी गवर्नमेंट क्यों नहीं साफ करती, टैक्स देते हैं। ये अप्रोच ठीक नहीं है, हमें अपने आप को खुद ठीक करना है। मुझे ये है कि कोरोना की वजह से इस तरह हो रहा है, काश मैं हम आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करता तो शायद ज्यादा होता, लेकिन मजबूरी है कि हमें थ्रू दिस ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग देनी पड़ रही। बट आई डू होप कि मेरी तरह और भी जो दोस्त आएंगे जो इस प्रोफेशन में जिन्होंने अपनी लाइफ दी है, डेफिनेटली दे हैव ट्राइड एट देयर बेस्ट कि वो किस तरह इस सेक्टर को करें, क्योंकि आप ही अभी तक जो आपको स्टेप नजर आएंगे यूनिवर्सिटीज में वो आपके यूनिवर्सिटी टीचर्स ने लिए हुए हैं मोस्टली। ये काइंडली इस फैक्ट को अपने पास रखें संभाल के। नजर आता है कि शायद ब्यूरोक्रेसी करती है, वो अपना रोल प्ले करती है, बट मेनली जो है वो यूनिवर्सिटी सीनियर फैकल्टी जो है जूनियर फैकल्टी के साथ मिलके ये रोल प्ले कर रही है। तो ये कुछ सालों से मिसिंग लिंक था बिटवीन द सीनियर एंड जूनियर। वो प्रोफेसर कहता था बस पता नहीं यार मैंने तो मुकम्मल हो गया लाइफ में, मैंने पढ़ा गया, क्या करना है, रिसर्च क्या करनी। जूनियर कहता था कि जी मैं इतना पढ़ा लूं जल्दी से प्रमोशन ही हो जाए मेरी। ये चीजें बाय चॉइस वालों के पास नहीं होती। बाय चॉइस वालों के पास पैशन होता है, उनके पास मिशन होता है, विजन होती है, दे हैव टू प्रोग्रेस देमसेल्फ इन सच ए वे कि स्टूडेंट जो उनके एज ए टीचर देख रहे हैं उसको, वो एक रोल मॉडल बने, टीचर एक मेंटोर बने। होता तो वो भी इंसान है, उसके लिए क्या उसने ट्रेनिंग ली होती है, वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो अपनी लाइफ में चीजें देखी जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे आपने पॉजिटिव रहना है। वो आपको थोड़ा सा इन चीजों का आपको भी पता होगा, लेकिन एक कंसाइज मैनर में एक अच्छी गुफ्तगू के अंदाज के लिए इन चीजों को, मैं आई एम नॉट ए मोटिवेशनल स्पीकर है, वो आजकल बहुत ज्यादा आपको जगह जगह यूट्यूब पे भी चैनल पे मिल जाएंगे। मैं तो आपको इस टॉपिक के जरिए अपनी जो सक्सेस स्टोरी है वो बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपको आसिफ मुनीर साहब ने बताया है कि मैं प्रेजेंटली आल्सो मेंबर ऑफ द पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, मैं इसका फाउंडर भी रहा हूँ। कई इनिशिएटिव भी हैं जो आपको पता चलेगा, क्योंकि हम जरा ठीक है मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा था, हमारा इसके साथ तल्लक नहीं, लेकिन कैसे ये चीजें अचीव की हैं, ये नॉर्मल बेस से अचीव की, सीनियर की बातों को गौर से सुना है, उनको अंडरस्टैंड किया है, एंड देन वी हैव मेड आवरसेल्फ कंटिन्यूअस एक लर्निंग प्रोसेस रहा, नॉट ओनली प्रोफेशनल बट ऑल्सो फॉर पर्सनैलिटी बिल्डिंग। तो मैं अब उसके ऊपर शुरू करता हूँ। तो लेट्स सी कि कैसे हम आगे मूव करते हैं। जैसे मैंने आपको एनवायरनमेंट डिफाइन की, आज ये वर्ड जो है बड़ा पॉपुलर है कि जनाब जो है वो ये थोड़ा सा ये देखें, ये आ रहा है, ये जो आ रहा है ये इसको दूर करें, ये मेरे स्कूल का देख लो उस पे आ रहा है। हाँ ये देख सकते हैं, 1 मिनट जरा आप होल्ड करेंगे तो मेरे पास थोड़ा सा इसका 1 मिनट में इसका हम इशू ठीक कर देते हैं। इसको थोड़ा सा इधर ले जाए जरा, बल्कि इस साइड पे एक्सट्रीम पे ले जाए, ठीक है इधर ठीक, इधर ठीक, इसको ले जाए ठीक है। अच्छा जी, ये एनवायरनमेंट जो है, बी वेयर दी बुलेट, हमारी जो एनवायरनमेंट जिसमें लिविंग कर रहे हैं, यू आपको सेंटर में नजर आएगा कि यू एंड अदर पीपल्स बिहेवियर, ये आप हम सब जानते हैं कि ये भी हमारी एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, हमारे मूड को इफेक्ट करता है, हमारी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नेगेटिव एनवायरनमेंट है। हर जगह आपको नेगेटिव एनवायरनमेंट मिलेगी, डिस्करेजिंग एटीट्यूड्स मिलेंगे और प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होंगी। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लोगों का रिस्पॉन्स जो है वो नेगेटिव होगा, एप्रिसिएशन नहीं आपको मिल रही होगी, इनफ जो है वो फाइनेंशियल आपको गेन्स नहीं हो रहे होंगे और प्रॉब्लम्स बड़े होंगे, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, आपके पास कन्वीनियंस नहीं है, बीमारी साथ आ गई है, कई सारे इश्यूज। तो ये नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट में चीज आ जाती है। तो इन बुलेट से, ये बुलेट्स मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कौन सी बुलेट्स हम यू को इफेक्ट कर रही होती हैं, दैट इज लीडिंग टू आवर एनवायरनमेंट, हम किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। ट्रैफिक है तो आप पहुंचना चाह रहे हैं टाइम पे, तो ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है। जैसे अभी कुछ ट्रैफिक इशू आए, ये हमारे लाहौर में नहर में कोई
ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि लहर ब्लॉक होने से सारे एडजेसेंट एरिया और आपके साथ भी लेट इंटरेक्शन शुरू हुई, ये सारे चीजें मौजूद हैं, तो वो आपको नेगेटिव इन्वायरमेंट की ही मिलेंगे। इसी तरह जो है दूसरी चीज, एक बुलेट है नेगेटिव वर्ल्ड व्यू। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि नेगेटिव वर्ल्ड व्यू क्या है कि हर जो है आप सोचेंगे कि ये पॉजिटिव व्यू क्यों नहीं ले रहा इस चीज का। हमारा मोस्टली हमारे लोगों का जो व्यू है वो दूसरी तरफ जाएगा। आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव व्यू ले लें, इसकी कई सारी एग्जांपल है कि अच्छा भी मैं ये यहाँ से अगर आपको उस कमरे में भेज रहा हूँ तो जनाब ये ऐसी कोई बात नहीं, आप जाएं वहां पे आपको अच्छी इन्वायरमेंट। आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो लगता है आपने फलाने को एडजस्ट करना है, लाजा मुझे तो आपने ये दिया है। तो ये नेगेटिव व्यू आपके एक्शंस में एज ए लीडर एज ये चीजें आपको आएंगी कि लोगों का बिहेवियर आपको, ये वो चीजें जो हम हमारे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इंक्लूड की गई हैं, जैसे आर्मी के हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी के हैं, ये चीजों ने भी सिखाई जाती। मैं थोड़ा सा उसको यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आ रहा हूँ ताकि हमें उसका पता चले। वी शुड बी फेमिलियर रादर अवेयर ऑफ दीज बुलेट्स। तो ये 3 बुलेट्स आई, इसके साथ ही और बुलेट्स भी हमारे पास हैं। चेंजिंग इन्वायरमेंट, अब ये इन्वायरमेंट भी चेंज हो रही है। आप सिटी वाइज ले लें, आप एरिया वाइज ले लें, यूनिवर्सिटी वाइज ले लें। आप कहते हैं कि शहर का कल्चर ये है, लाहौर का कल्चर जैसे आपको पता है कि खाने पीने का बहुत मशहूर है एरिया, फैसलाबाद का अपना है, सियालकोट का अपनी बिजनेस स्टाइल है। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट जो है वो ड्यू टू डिफरेंट कंडीशंस चेंज होना शुरू हो जाती है मुख्तलिफ इंस्टेंट्स पे, मुख्तलिफ एरियाज में। एक ये बुलेट है और उसके साथ आ जाता है आपके पास पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये एक ऐसी चीज है जो आपसे बहुत लोग शेयर करेंगे, दे विल ट्राई टू नरेट देयर स्टोरीज। तो नॉर्मली हम उसे कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करने में हर्ज नहीं, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू योरसेल्फ। ये मैं बार बार फिक्र आपको बोलूंगा कि हमें आज जो वक्त है, जो टाइम है, जिसमें चेंजिंग इन्वायरमेंट बहुत है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत हो रही है, बड़ी सारी चीजें वो बुलेट्स में आ रही, वो सारी की सारी हमें डिमांड करती है कि हम अपने आप को इंपॉर्टेंस दें। दैट इज वेयर वी आर लैकिंग एट द मोमेंट, स्पेशली इन पाकिस्तान। जो मैंने देखा है इंटरव्यूज लेते हुए सिलेक्शन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे, सिंडिकेट्स पे, जाहिर है मुझे ये अपॉर्चुनिटी हासिल है, तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि कैंडिडेट आ रहा है तो कैंडिडेट जो है ना वो बस पर्सनैलिटी किसमें खो गया है कोई समझ नहीं लगती। तो पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको लोग बताएंगे, आपके अपने भी हो सकते हैं, बट दे शुड नॉट हैम्पर्ड। ये वो आपकी पर्सनैलिटी पे इन्फ्लुएंस ना करें नेगेटिव। उनको आपको लेसन तो लर्न कर सकते हैं, मोस्टली चाहिए ये कि लेसन लर्न करें, अपनी उसको एम्बेडेड ना करने अपनी पर्सनैलिटी में। दैट विल डेफिनेटली कॉज सम इश्यूज, प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग हेल्थ इश्यूज। डिटर्मिनिज्म थ्योरी, ये मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा आपको, इनको अलग-अलग भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये भी बहुत है कि मेरा तो वालिदैन ऐसे थे, गरीब थे, मेरा तो रिश्तेदार ऐसे थे, मुझे ये हो गया। वो सारी चीजें अपनी जगह होती हैं, उनके अपने इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन लेट्स सी हम उनको कैसे टैकल करते हैं। नेगेटिव इन्वायरमेंट की ये थोड़ी सी मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश की है कि आप बैठे हैं काम पाइल अप हुआ आपके अराउंड काम, और आपको कोई समझ नहीं लग रही कि आप यू आर लिंक्ड विद अदर ऑफिसेज ऑल्सो, तो काम आपका इफेक्टिव वे से नहीं चल रहा। ये यूनिवर्सिटीज में होगा क्योंकि समझा जाता है कि प्राइमरीली तो ड्यूटी लेक्चरर या फैकल्टी मेंबर्स की यही कि वो लेक्चर दें, बट जब आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी तो आप कहेंगे कि आपके तो अराउंड जो है वो नेगेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट आपका एक दफा बनाएंगे, अप्रूव नहीं होगा, दूसरी दफा कहेंगे शायद ये कोई नेगेटिव लोग बैठे हैं। नहीं, आपने उस एनवायरनमेंट को अपने लिए खुद कंड्यूसिव बनाना है। तो ये एक शक्ल आती है कि नेगेटिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट हो जाती है और आप उसमें गुम होके रह जाते हैं, विच इज नॉट गुड। टोटली लॉस्ट नहीं करना आपने। इसी तरह दैट इज द डॉग ईट डॉग, एवरीवन फाइटिंग टू गेट हेड। ये जो है ये बहुत अजीब सिचुएशन है, कोई किसी पे अप्रिशिएट नहीं करेगा। कि डेफिनेटली ये भी होगा कि आपके काम को और क्लेम कर रहा होगा, इंक्लूडिंग योर बॉस या आपके सीनियर्स। तो ये है कि जी मैंने आगे निकलना है, आगे निकलना है। आगे निकलना जो है, हेड जाना इज नॉट ए बैड थिंग, बट इन ए कंस्ट्रक्टिव वे। दैट इज इन ए पॉजिटिव वे यू शुड मूव ऑन। दैट इज नॉट द पॉइंट कि आप आगे बढ़ना छोड़ दें, बट इन ए नेगेटिव सेंस अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि नहीं जी, तो वो मेरा ख्याल है कि खासा डेंजरस सिचुएशन आएगी, उसका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह नो वन अप्रिशिएट्स योर कंट्रीब्यूशन। ये भी मैंने पहले आपसे कहा है कि दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के एक्सपेक्टेशन लेवल जो है वो हमने इतना रखा होता है कि शायद ये छोटा सा भी काम किया है तो हम नो वन अप्रिशिएट योर। इसका मतलब ये भी है कि आप भी इस नेगेटिव इन्वायरमेंट में ना जाएं और ना ही किसी
और पर्सन को इस एनवायरनमेंट में लाएं कि अगर आपका स्टूडेंट छोटी सी असाइनमेंट सॉल्व करता है, काइंडली अप्रिशिएट हिम, या वो कोई छोटा सा ऐसा काम इनोवेटिव करता है, या वो आपके लिए कोई ऐसा क्लास वर्क के लिए ऐसी सजेशन देता है या ऐसा परफॉर्म करता है, तो ये छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस जो हैं उनको अप्रिशिएट करें. इवन इट इज एप्लीकेबल टू योर एडमिनिस्ट्रेशन जहां पे आप काम कर रहे हैं, कि छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करना सीखें अपने आप को भी, और ये ज़हन में रखें कि इससे, इसकी वजह से, फॉर दिस रीजन आपकी पर्सनैलिटी इफेक्ट ना हो. आप एक्सपेक्ट करेंगे अपनी चेयरपर्सन से, चेयरमैन से, कि शायद ये मुझे अप्रिशिएट किया जाएगा, मैंने इतने क्लासेस ली हैं, इतने ट्यूटोरियल्स लिए हैं, इतनी रिसर्च स्टूडेंट्स को किया है. तो प्लीज ये ज़हन में रख लें कि आप पे उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि नो वन अप्रिशिएट योर कंट्रीब्यूशन. ये नेगेटिव एनवायरनमेंट का हिस्सा है. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू मच वर्क नॉट इनफ. As you will grow in your career, you will realize this fact कि much work is there, but enough help नहीं. कहीं आपको अटेंडेंट नहीं मिल रहा, कहीं आपको क्लर्क जो है ऑफिस का वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, कहीं आपको यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट जो है वहां से आपके लिए इश्यूज आएंगे कि काम तो दे दिया गया बट फैसिलिटीज आर नॉट देयर. वो इन फैसिलिटीज को, मिसिंग फैसिलिटीज को और मच वर्क जो आपको असाइन किया जाता है, दैट इज द पार्ट ऑफ योर कैरियर, बट दे शुड नॉट इफेक्ट योर पर्सनैलिटी. तो ये नेगेटिव एनवायरनमेंट का हिस्सा ये भी है. अब इसको पॉजिटिव कैसे बनाना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे. डेडलाइंस आर अनरियलिस्टिक. जो बॉसेस हैं आपके, दे विल गिव यू अनरियलिस्टिक डेडलाइंस. You are visualizing that this work not be done in a week time. So, but as a chairperson, I say no, you have to do it within a week. So that is unrealistic without knowing कि भाई काम का क्वांटम क्या है, कितना काम है, कैसे करना है, what facilities are available there. तो हम उस पर चलते हैं. जैसे आजकल ये हुआ शुरू यूनिवर्सिटियों में कि प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दें जल्दी से, QEC मांग रहा है. कोरोना की वजह से 6 मंथ जो इंस्टीट्यूशन बंद रहे हैं, तो आप कोई रिसर्च वर्क भी नहीं कर सके, कोई ट्यूटोरियल वर्क भी नहीं कर सके. तो बजाय इसके कि आप उस नेगेटिव एनवायरनमेंट को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाने की कोशिश करें, ट्राई टू बिहेव एज ए पॉजिटिव पर्सन. के ऑब्वियसली डेडलाइंस आर सम टाइम अनरियलिस्टिक. एज ए बॉस आप इसको भी फैक्टर को देखना पड़ेगा कि आप भी ये ना करें. लॉन्गर आवर्स, एडिशनल वर्क. अब यूनिवर्सिटीज में दैट इज, मैंने जो पहले इशू आया था कि पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड कि हम जनाब इसलिए यूनिवर्सिटी की जॉब कर रहे हैं, और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में, कि क्लास लेने के बाद घर जा सकेंगे. दैट इज ए टर्म विच इज रियली ए वेरी डेंजरस टर्म. दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज जो हैं वो डेफिनेटली एडिशनल वर्क, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यू हैव टू रन द यूनिवर्सिटीज. इस फैक्टर को मत भूलें. दैट इज ए बिग इशू नाउअडेज. क्योंकि फॉर हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि जनाब हमने क्लास ली, हमारी ड्यूटी खत्म होगी, चलें अब और काम भी करें. एडिशनल वर्क जो है वो हम क्यों करें एडिशनल वर्क, बताएं. उसके लिए आजकल माजरत के साथ, सॉरी टू से, कि जनाब इसके साथ पैसे कितने जुड़े हुए हैं. हर चीज पे यूनिवर्सिटी टीचर जो है वो कैलकुलेशन ही करनी शुरू हो जाता है, विच वॉज नॉट देयर इन आवर कल्चर. दुनिया भर में भी ये नहीं है. आपको इन इवनिंग टीचर्स बैठे नजर आएंगे. आई डोंट से कि आप इवनिंग में बैठे, बट आई से कि ये फैक्टर ज़हन में रखें कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू लुक इनटू दैट, कि लॉन्गर आवर्स और एडिशनल वर्क के इस फ्रेज को भी एड्रेस करें. लेकिन ये नेगेटिव एनवायरनमेंट भी है. आई अंडरस्टैंड कि अगर वीक पर्सनैलिटी है उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा नेगेटिव एनवायरनमेंट में. बजट कंस्ट्रेंट्स आर आल्सो नेगेटिव. यू वांट टू डू समथिंग बट देयर इज नो बजट अवेलेबल टू यू. ये अब आगे इसकी आएगी कैसे अपने आप इसको देखना है. ये वो फैक्ट है जो आपके ज़हन में रहे कि ये आपको इश्यूज आएंगे. यू विल बी फेसिंग दीज इश्यूज बीइंग यूनिवर्सिटी टीचर, क्योंकि बजटरी एलोकेशन आपको पता है देयर इज इशू फॉर द यूनिवर्सिटीज टिल टुडे, दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी आर नॉट मेट विद द गवर्नमेंट. आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में से दे ट्राई टू प्रोवाइड द बजट, बट एट द सेम टाइम दे एक्सपेक्ट दैट यूनिवर्सिटीज शुड ट्राई टू generate their own financial resources. There is a debatable topic जो दूसरे स्पीकर आपको इस बारे में डेफिनेटली आपसे डिस्कस करेंगे. इसी तरह competition is eating us alive. That is an issue which is not only being a university teacher but as a social, being a person in a society. That is problem with us. Competition. अब मेरे पास गाड़ी ये है तो उसके पास ये है. ये मैं मिसाल दे रहा हूँ कि सारी फिक्र टीचर इसी चीज में अगर घूम रहेगा तो ये नेगेटिव एनवायरनमेंट होगी. अगर आप अपने आप को कंट्रोल जैसे आगे आएगा तो यू हैव टू अवॉइड दिस, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर्स
इन ए वे आपकी नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस जो है दैट विल आल्सो बी अफेक्टेड बाय दीज ऑल कंस्ट्रेंट्स व्हिच इज डेफिनेटली creating negative in work environment. So competition is eating us alive. अब आगे आपके पास ये जो नेक्स्ट है वो है जी पुअर मैनेजमेंट पब्लिक डायरेक्शन। इसकी ऑब्वियसली ये भी नेगेटिव वर्क है जो आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट शेप में मिलेगा, तो दैट विल ऐड टू दिस टॉपिक। लेकिन ऑब्वियसली इसलिए इसको पॉइंट आउट किया गया कि नाउ यू हैव टू डिसाइड all these points how you have to behave so that you may not be able to create negative work environment for others who are coming after you or who are working under you. So you also try to realize them that these are problems, but one has to make his or her own way from overcoming all these difficulties. For that you need a major personality change in yourself, a major change in your thinking process. ये थिंकिंग प्रोसेस का वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे। दैट हैज टू बी टेकन केयर दैट यू हैव टू हैव ए मेजर चेंज इन योर थिंकिंग प्रोसेस। जॉब इनसिक्योरिटी, you have noticed that in various universities, they are now offering only contract appointments. So that obviously contributes towards job insecurity. Job insecurity is also contributing towards negative environment. Other people's behavior, that is also, as I told you, is one of the bullet plans. Walking wounded. सुबह यूनिवर्सिटी टीचर लेक्चर देने आ रहा है तो पता चलता है कि नजर आ रहा है कि ये वॉकिंग बाउंडेड है, कि बहुत सारे इश्यूज इसके साथ हैं। तो काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप एक बड़ी काम पर्सनैलिटी में आपको होना चाहिए और स्टूडेंट्स शुड फील इंस्पायर्ड फ्रॉम योर बिहेवियर, फ्रॉम योर वे ऑफ टॉकिंग, ऑल दिस इवन इन द मॉर्निंग। तो वॉकिंग बाउंडेड भी नजर ना आए। इसके साथ नेक्स्ट जो है बिल्डोजर्स, जो आपके काम को बिल्डोज करने के लिए एवरीवेयर देयर विल बी एक्सप्लोडर्स भी आपके पास होंगे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुलेट है, जो एक्सप्लोडर्स भी होंगे। देन ब्राउन नोजर्स, ये तो हमारी एक इशू है, गॉसिप्स भी हैं कि हम ब्राउन नोजर्स के तौर पे एक्ट करने की कोशिश करते हैं टू नो हु इज हू एंड व्हाट ही इज डूइंग और शी इज डूइंग। इसी तरह विनर्स हैं, इसी तरह आपके पास बैकस्टैबर्स हैं। ये सारी चीजें जो इस बुलेट को कर रही हैं, नेगेटिव्स हैं ऑफ ए सिचुएशन, ये सारे इस बुलेट अदर पीपल बिहेवियर में जाते हैं। ठीक है जी। और ये सब आपके पास आगे पैट्रोनाइजर्स भी हैं, इसी तरह स्नाइपर्स भी हैं, कंट्रोलर्स भी हैं, कंप्लेनर्स भी हैं, जिनको हमेशा कंप्लेन करने की आदत होगी। देयर अदर पीपल, वो कुलीग भी हो सकते हैं और आपके स्टूडेंट्स भी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के भी सफर्स हैं। ये सारे के सारे जो हैं जी, ये वो अदर्स बिहेवियर में आते हैं। चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो है, ये भी मैंने बताया था कि इज वन ऑफ द बुलेट विच इज अफेक्टिंग आवर एनवायरमेंट। जो आपकी एनवायरमेंट कैसे इफेक्ट करती है, दैट इज द चैलेंज आवर पैराडाइम्स, जो हमने डेवलप किए हुए हैं उसको चैलेंज करती है। दैट इज द अंडर द चेंजिंग एनवायरमेंट्स आल्टर्स द वे वी थिंक। जैसे मैंने थिंकिंग प्रोसेस का, क्या आप उसके अपने थिंकिंग प्रोसेस को इफेक्ट होते देख रहे हैं, दैट एनवायरमेंट इज इफेक्टिंग यू। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल में जा रहे हैं तो आप रेड पे खड़े हो रहे हैं, मैं आता हूं तो मैं रेड को क्रॉस करता चला जाता, तो आप कहेंगे कि मुझे तो ये थिंकिंग प्रोसेस में ये है कि आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ एट द रेड सिग्नल, तो ये इसको क्रॉस ओवर कर रहा है। तो ये एक आपकी एनवायरमेंट, आपकी मेंटल कंडीशंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। मेक्स लाइफ मोर डिफिकल्ट फॉर ए वाइल, काजेस स्ट्रेस, लॉट ऑफ रीजंस आर देयर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस की बहुत सारी काजेस हो सकती हैं। इज एन आउटगोइंग फैक्ट ऑफ लाइफ। ये जो मैंने बताया है, challenges our paradigms, alters the way we think and makes life more difficult, and we are obviously facing lot of stress due to different reasons and causes are there, different causes, so they are all contributing to our changing environment. हमारी expectation levels को ये disturb करती हैं। तो ये bullet इस लिहाज से important है, जो कि हमारी environment को जो है वो affect कर रही है, which is why we call this changing environment, या इस इन फैक्टर्स की वजह से चेंजिंग एनवायरनमेंट आ रही है। इसी तरह द ओनली पर्सन हु ऑलवेज लाइक चेंज इज ए
wet baby. ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है कि the only person who always likes change is a wet baby means कि अगर हम इन challenges को, इन factors को समझना शुरू करें तो हम अपने आप को change कर सकते हैं. But everybody says कि I am right, he is wrong or she is wrong, तो काम नहीं बनेगा. There will be no change at all. First we should know कि what are the challenges which we have to overcome for making our environment better. तो उसमें से ये बुलेट है जो मैंने डिस्कस किया आपसे कि इस बुलेट में जो आते हैं कि हमारी रवायात को चैलेंज हो रहा है, हमारी पैराडाइम्स को चैलेंज हो रहा है, और आवर थिंकिंग प्रोसेस इज बीइंग इफेक्टेड, और वेराइटी ऑफ फैक्टर्स की वजह से हमारी लाइफ जो है वो डिफिकल्ट आ रही, एंड दैट इज रिजल्टिंग इनटू डिफरेंट कॉजेज ऑफ स्ट्रेस विद अस. तो डेफिनेटली वी ट्राई टू चेंज आवरसेल्फ. तो कैसे ये सारा काम हम कर सकते हैं, कैसे इसको आगे ला सकते हैं? तो ये सारा इसलिए हो रहा है कि आपका थिंकिंग प्रोसेस ठीक होगा, आपकी एनवायरनमेंट टू ग्रेट एक्सटेंट मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ बेटर होगी, तो डेफिनेटली योर परफॉर्मेंस विल बी बेटर and you will be behaving as a good university teacher, and then you will be able to perform your duties accordingly. Again, I give the emphasis not only teaching, but also the way you are thinking, the way you have to transfer your personality towards the students to make them stronger and stronger to face the futuristic challenge. ये ज़हन में रखें कि उनको तैयार आपने करना है, आपने प्रिपेयर करना है, तो फ्यूचरिस्टिक चैलेंजेस को फेस करना सीखें. तो आपको अपने अंदर चेंज लानी होगी, so that students should feel inspired from you, should consider you as a guide and mentor, because they have also variety of issues with them. They are coming with you in your institution with a lot of stress. You are very familiar to that. For that reason, you have to change yourself. So this changing environment bullet is very important for you. Please do consider to make change in yourself. So keeping that sentence in mind, the only person who always likes change is a wet baby. ये just मैं repeat कर रहा हूँ, इनकी importance देखने के लिए. These are all ongoing fact of life. Past experiences. ये आपको पता है, आप कहेंगे पहला एक्सपीरियंस मुझे ये हुआ था, आप you are already stuck up with this past experience. कुछ regrets थे, ऐसे क्यों हुआ, डिफरेंट थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है आपके. फिर ये भी है you're flooded with the past experiences, ये सभी नेगेटिव थे. then you have a the variety of ways you express yourself. ये पास्ट एक्सपीरियंस जो है इनको कितना आपने अपनी पर्सनैलिटी में करना है एम्बेडेड, या इसको थोड़ा सा जस्ट फॉर लर्निंग प्रोसेस रख के आगे चलने की कोशिश करनी है. इन माय व्यू ये पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको लर्निंग की तरफ तो कंट्रीब्यूट करें, और दे शुड बी एबल टू हेल्पफुल इन मूविंग फॉरवर्ड बाय यू, नॉट कीपिंग यू बैक एट द बैक एंड. पास्ट एक्सपीरियंसेस. फिर आ गया यही रिग्रेट्स. डिफरेंट फॉर्म्स बताई गई हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं कि कैसे आप जा रहे हैं, कहाँ से आपको रिपल्शन है, कहाँ से आप ओवरलोडेड हैं, कहाँ से आप ओवर स्ट्रेस्ड हैं. सारी पास्ट एक्सपीरियंसेस में आएगी. एंड देन नेक्स्ट कम्स द नेगेटिव वर्ल्ड व्यू. दिस नेगेटिव वर्ल्ड व्यू is also contributing towards the environment which is with you. Media frenzy, one of the basic factor है कि आजकल तो आपको पता है कि everybody is looking towards the media, और उसकी बाद में पता चलता है जैसे सोशल मीडिया है. सोशल मीडिया में क्या हो रहा है कि डेफिनेटली आप एक न्यूज को चाहते हैं कि उसके ऑथेंटिकेशन मिले. जस्ट जब आप उसको रीड कर रहे हो तो थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम यू आर इन ए पोजीशन टू से दैट दिस इज ए फेक न्यूज, या इसकी ऑथेंटिसिटी जो है दैट इज नॉट वैलिड. तो मीडिया फ्रेंजी दूसरी तरफ ये भी है कि हम कहते हैं कि मीडिया ये कह रहा है कि ये ऐसे है तो ऐसे ही हुआ होगा. तो वो इश्यूज जो हैं वो अपनी जगह एक क्रिएट कर रहे हैं, और ये वर्ल्ड लेवल इश्यूज हैं जो कि दे आर एडवाइजिंग अस कि मीडिया फ्रेंजी नहीं होना चाहिए. यू शुड ट्राई टू बी रियलिस्टिक. डेफिनेटली मीडिया हैज इट्स ओन रोल, बट everything cannot be attributed, everything cannot be linked with the media. So one should not become a media frenzy, one should become a realistic one and try to understand the real situation.
recent statistics, crime down 20%, America reporting to 600%. Look at what you are looking at. ठीक है जी, 20% डाउन है, लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग देखें अप टू तो 600% बढ़ चुकी है। तो आप बताएं, एक ही न्यूज जो बार बार दिन में चलेगी तो ऑब्वियसली डिफरेंट पीपल विल बी गेटिंग इट। इसने एग्जांपल जो दी है वो सिर्फ क्राइम की दी है, ठीक है जी। तो अगर आप 600 टाइम्स को रेट डाउन तो क्राइम रेट जो 20% पे आ जाएगा। तो रीड इसको देखें कि मीडिया फ्रेंजी क्या कर रहा है। लुक एट व्हाट यू आर लुकिंग एट। एक और जो इंपॉर्टेंट बुलेट है वो डिटरमिनिज्म थ्योरी है। ये जो जेनेटिक्स कि माई ग्रैंड पेरेंट्स डिड इट टू मी, ये वो ऑब्वियसली सेंटेंस है जो हम इन केस ऑफ फेलियर्स हम अमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम ये बोलने की कोशिश करते हैं। इसके वेरिएटिव रीजन है कि जेनेटिकली मुझ में ऐसे है, इनहेरिटेड ट्रेड्स, तो ये भी एक आपकी इन्वायरमेंट यू को डिस्टर्ब करती है। तो काइंडली ऐसी आर्गुमेंट से अवॉइड करें इन क्लासरूम और इन टॉकिंग विद द कोलीग्स इन मीटिंग्स कि ये मेरे में जो फॉल्ट है या जो मैंने से किया है, तो या मेरी जो सिचुएशंस है इस वक्त आप देख रहे हैं या मैं जिस पर्सनैलिटी को आप मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज ड्यू टू माई ग्रैंड पेरेंट्स डिड इट टू मी, दैट इज नॉट ए गुड, दैट इज डिटरमिनिज्म थ्योरी। In psychic, my parents did it to me, upbringing is not right. This is no way valid point at all. Don't think like this. You have your own life. Environmental, my spouse, my boss, the company, the economy, etc. Lot of reasons you will be giving that they are affecting your personality. So that is a determinism theory is doing this to me. And obviously surrounding is also one of the major factor which is contributing towards this determinism theory. Indirectly it is acting, disturbing your environment, that is you. Now life's little question. Are some people just born positive thinkers? ये थोड़ी देर के लिए आप सोचिए for some time. Are some people just born positive thinkers? हर इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है विद सेम कैपेबिलिटीज। साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है, बट डेफिनेटली उसकी इन्वायरमेंट जो है उसको कैसे इफेक्ट करती है वो हम देख भी रहे हैं और यू विल आल्सो हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दिस। सो बट दिस इज नॉट, आर इट्स देयर चॉइस, आर इज इट देयर चॉइस? नो। हमने पॉजिटिव होना है या नेगेटिव होना है, इट्स नॉट विद देम। एंड देन नेक्स्ट कम चूज द राइट लगेज। तो जो मैंने पहले आपको कहा है कि ये आपने देखना है कि आर सम पीपल जस्ट बॉर्न पॉजिटिव थिंकर्स, आर इज देयर चॉइस, तो ये तो बिल्कुल टोटल रॉन्ग है। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू grind and polish your personality based on your wisdom, based on your experience, and based on the way you have been brought by your teachers, by your parents, by your environment. So if you will start learning yourself, तो आप ये जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, definitely you will be either becoming a positive if you are accepting those, otherwise you will becoming a negative thinker. और negative thinker की आपने बुलेट्स देख ली कि उनके अपने इश्यूज जो हैं they are very interrelated. So first step is choose the right luggage. तो राइट लगेज जो है ये आप देखना है कि सबसे पहला स्टेप है कि राइट लगेज चूज करें। डॉज बुलेट्स, जो भी बुलेट्स डिस्कस किए हैं इनको डॉज करें। वेरी सिंपल वर्ड इज देयर, डॉज बुलेट्स। बट नाउ यू नो व्हाट आर द बुलेट्स व्हिच आर अफेक्टिंग यू। जो हमने यू शो किया है कैसे थ्रू योर एनवायरनमेंट इट इज definitely disturbing you or contributing it in a positive way. So dodge bullets, उनको कोई dodge करें, be bulletproof. तो ये जो सफर है dodging the bullets and becoming a bulletproof, ये वे है जो आपने as a university teacher भी adopt करने हैं ways and means and through your thinking process, जो भी हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किए हैं कि आप इन बुलेट्स को डॉज करते हुए आप बुलेट प्रूफ बने। कि बुलेट प्रूफ का ऑब्वियसली यहाँ मीनिंग यही है कि आप पे कोई इन्वायरमेंट जो है आपकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इफेक्ट ना करे, पॉजिटिव इफेक्ट करे। आपकी ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉट ओनली थ्रू प्रोफेशनल नॉलेज बट अदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स यू हैव गॉट इट।
The problem with dodging bullet, you are going to get hit. सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो वो तो हिट करना है उन्होंने, देयर इज ए इशू. अब आपने डॉज करना है कि हाउ यू कैन अवॉइड दीज बुलेट्स, अदरवाइज वो हिट होगी, इश्यूज आएंगे. That is choice 2 is wear a bulletproof armor. अब ये आर्मर जो है ये ऑब्वियसली योर थिंकिंग प्रोसेस से आएगी, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि आप उन फैक्टर्स को अपने जहन में बार बार मेनी टाइम्स लाएंगे कि आई मे नीड दिस टू चेंज माई सेल्फ. जब तक ये नहीं होगा, लाइट काइंडली नोटेड कि आप अपने आप को बुलेट प्रूफ नहीं बना सकेंगे. सो इट्स बेटर फॉर बिकमिंग ए गुड टीचर बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स, स्मॉल टेक्निक्स. तो आर्मर कौन सी हो सकती है आपकी? bulletproof armor comes from definitely self change, जिसमें मैं एम्फेसिस दे रहा था. ये वो चीज है जो हमें अगर रियलाइज कर लें हम, ऑब्वियसली ये आपकी पर्सनैलिटी में बहुत मेजर चेंज लाता है, और आपकी कंट्रीब्यूशन नॉट ओनली टुवर्ड्स यूनिवर्सिटी बट ऑल्सो टुवर्ड आवर सोसाइटी विल बी great contribution. But that is comes from self change. How you can make a self change? Putting on the armor. अब you have to change 3 things. कौन सी 3 चीजें हैं? Let's see that. Attitude. My dear, here one should know. आप इस ट्रेनिंग के आज के सेशन के बाद जरूर देखें इसको कि what is the difference between attitude and behavior. Most of us doesn't know what is the attitude and what is the behavior. अगर आपसे पूछा जाए तो आप सब कहेंगे अपना बिहेवियर चेंज कर लें जी. Major issue is the attitude. If you change your attitude, you are moving towards putting the armor on your body to avoid all those bullets which we just had discussed. और automatically in a easy way, in a very simple way, आपकी personality जो है ना वो develop होनी शुरू हो जाएगी. So you will definitely indirectly developing your capacity to learn more. Obviously अगर आपका मूड ठीक है तो आप हर एक की बात को सुनना पसंद करेंगे. अगर मूड खराब है तो डेफिनेटली आप कहेंगे आज कोई मेरे से बात भी ना करे. वही जैसे बाउंडेड नजर आएंगे और स्टूडेंट्स भी कहेंगे खैर हो क्या हो रहा है. ये सारी चीजें उसके साथ साथ लिंक्ड हैं. तो काइंडली फर्स्ट थिंग इज चेंज योर एटीट्यूड. सेकेंड कम बिहेवियर. इसलिए मैं आपको एम्फेसिस दे रहा था कि काइंडली इन दोनों का डिफरेंस आप इस लेक्चर के बाद खुद डेवलप करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर. ये आपको बड़ी जगह मिल जाएगा. ये जो 2 फैक्टर हैं इसे रेड में क्यों शो किया गया है कि एटीट्यूड से ही आपका बिहेवियर डिटरमिन होगा. मोस्टली हमारे लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, एक ही जगह उसका तर्जमा कर लेते हैं. एटीट्यूड और चीज है, बिहेवियर और चीज है. एटीट्यूड को उर्दू में आप रवैया कहेंगे और बिहेवियर को उर्दू में आप सलूक कहेंगे. तो मैं इसलिए क्या कि थोड़ा सा मैंने डिफरेंस दिया है. बाकी रेस्ट लाइज विद यू के आपको कितनी इसकी यूजफुलनेस नजर आएगी जब आप इसको पढ़ेंगे. तो काइंडली हैव एन गुड आइडिया अबाउट डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर. द थर्ड वन, थिंकिंग. सो थ्रू दिस प्रोसेस आपकी थिंकिंग by changing the attitudes and by changing your behavior in turn, you will be definitely changing your thinking process. ये 3 चीजें अगर आप चेंज कर लेंगे, you will be a different person. जो नॉलेज सीकर होगा, जो एम्पैथी एडमिनिस्टर कर सकेगा, एम्पैथी दे सकेगा लोगों को, एम्पैथी उसके अंदर होगी, जो एक गुड लीडर बन सकेगा, जो लोगों के लिए मेंटर एंड गाइड बन सकेगा. लोगों के इश्यूज, स्टूडेंट्स के इश्यूज, फैकल्टी के इश्यूज जब आप जो डेवलप करते चले जाएंगे तो वो इतना अपने आप को इक्विप करता चला जाएगा. ओनली बाय दीज थ्री हैबिट्स. ऑलवेज ट्राई टू इंप्रूव योर एटीट्यूड, बिहेवियर एंड देन थिंकिंग. स्ट्रेट वे आजकल जो हमें पता चलता है क्लास में, हम सिलेक्शन बोर्ड्स में बैठे होते हैं और कहीं जगह और सीरियस इंटरव्यूज भी हो रहे होते हैं, अजीब एटीट्यूड होता है, अजीब बिहेवियर होता है. ये आप माइंड मत करें. हम इंटरव्यू लेते हैं तो बाज़ औक़ात कैंडिडेट को
ये भी नहीं पता होता कि उसके पीएचडी का सही टाइटल कौन सा है। बिलीव इट, आप अंदाजा लगाएं कि सिलेक्शन बोर्ड के लोग किस तरह बॉयल हो रहे होते हैं कि ये शख्स ने पीएचडी की है, उसको इसके टाइटल भी नहीं पता है। आपको शायद अभी लगेगा कि ये शायद ऐसी बात हो रही है, आप देखें तो स्ट्रेस के अंडर बंदा कर जाता है। आई गिव द फुल मार्क्स के, पता होगा उन्हें, लेकिन क्योंकि ये स्टेप्स नहीं अपनी पर्सनैलिटी में कि ये सिर्फ डिग्री ले ली, दैट डजंट गारंटी कि यू आर बिकमिंग गुड पर्सन। आप यहां पे मैं इसलिए रुक रहा हूं कि आजकल इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं एट इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। मैं भी कई फोरम्स पे हूँ, अजीब है, वो कहते हैं कि इंजीनियर अच्छा है, इंजीनियर नहीं अच्छा इंसान नहीं हो रहा, डॉक्टर अच्छा इंसान नहीं बन। जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप जरा टेलीफोन करके देख लें बाबरा के इंजीनियर को, पता जाएगा अलग आपको कैसे वो आपके साथ बिहेवियर कर रहा है। वो कहेगा जैसे मैं बॉस हूँ। कल ही आपने देख लिया कि एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने एक सिक्योरिटी गार्ड को कैसे मारा है। दिस इज हाउ आवर एटीट्यूड इज देयर। इसी तरह आप वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स आपके पास आएंगी इन वेरियस सिचुएशंस जहां हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर जो है वो क्वेश्चन मार्क होगा, और हमें अफसरी छाई नजर आएगी कि हम बड़े अफसर हो गए। हम यूनिवर्सिटी टीचर को तो ये सोचना भी नहीं चाहिए, उसे इन पैरामीटर्स पे आना चाहिए। ही हैज टू लीड द नेशन वट एवर द सिचुएशन इज। ये जेहन में रख लें। आपको मुख्तलिफ कोटेशंस आप पढ़ते, मैं तो सिर्फ आपको एक तरह से रिवीजन करवा रहा हूं कि नेल्सन मंडेला की देख लेंगे, जिसका सिस्टम खराब करना है आप उसके एजुकेशन सिस्टम को खराब कर दें। तो एजुकेशन सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी मेंबर्स। अगर वो मोटिवेटेड है, दे आर डायनामिक, दे आर नॉलेजेबल, दे आर नॉलेज सीकर, देयर थिंकिंग प्रोसेस which is developed by themselves, which is a continuous process through their attitude and behavior, definitely revolution आ जाता है। वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके टीचर्स के जरिए रेवोल्यूशन लाता है, टीचर्स के लिए चेंज लाता है, एक नहीं हजारों एग्जांपल्स। तो काइंडली इसकी इंपॉर्टेंस को समझे। यूनिवर्सिटी टीचर होना ही बड़ी ऑनर की बात है, और अगर आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देनी शुरू करेंगे, आई एम इंपॉर्टेंट, जब हम अपने को कहते हैं आई एम इंपॉर्टेंट, दैट डजंट मीन कि यू शुड चैलेंज द अदर पीपल। You should be helpful for them, you should be a guide for them, you should be a good facilitator for your seniors, you should be a good worker for the university. Try to learn more and more and new things, not only based on your professional requirement, but also on your being faculty member of the university। जो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको हॉस्टल का वार्डन बनाया जा सकता है, आपको डिफरेंट कमेटी में करिकुलर डेवलपमेंट पे लगाया जा सकता है, आपको लेबोरेटरी एस्टेब्लिशमेंट पे इक्विपमेंट की केयर करने के लिए लगाया जा सकता है। अब क्या हो रहा है कि जब हम इन चीजों को नहीं करते, तो आई कैन से कॉन्फिडेंटली देयर आर इश्यूज आर देयर इन यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटीज तो वो प्लेसेस है जिसमें मैंने आपको पहले कहा कि ये जूनियर सीनियर स्कॉलर्स हैं, दुनिया भर में उनकी आपस में म्यूचुअल डिस्कशंस होती हैं। अब सरप्राइजिंगली हमारी यूनिवर्सिटीज में जब हम व्हेन वी स्टार्टेड आवर करियर, दिस वाज ए रूटीन कि फैकल्टी मेंबर्स चाय पे इकट्ठे होते थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाते थे, डिस्कशन करते थे। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड द यूनिवर्सिटीज। क्योंकि यूनिवर्सिटीज आर प्लेसेस वेयर यू आर ट्राइंग टू पुट देयर जो आपकी प्रोडक्ट है वो मार्केट में जाने वाली है। दे ट्राइंग टू have the social and economic impact in the society। जो आप आज नॉलेज इकोनॉमी की बातें कर रहे हैं, that has to be taken care by the universities। तो my dear, you must remember कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रिटायर होता है तो जनाब वो यूनिवर्सिटी में जा रहा है। दूसरे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, दूसरे कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, व्हाई दे गो देयर? कहाँ से आपका जो है ये MIT बना है, कहाँ से कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड है, कहां से हमारी कंट्री में बड़ी बड़ी अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं, कहां से बन गए? बिल्डिंगें से बने। माय डियर, यूनिवर्सिटी फैकल्टी की वजह से इनकी फैकल्टी रिस्पॉन्सिबल हो रही है। दे आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन गेटिंग देयर गेन्स, सॉरी टू से, दे आर मच मोर इंटरेस्टेड इन पुटिंग देमसेल्फ एज ए प्रोफेशनल एंड ए मेंटोर एंड गाइड टीचर्स ऑफ ए यूनिवर्सिटी। ये तीन चीजें मैंने कही हैं, काइंडली इनको लिख लें। ये हमारे कंट्री में प्रॉब्लम आ रही है। इंटरव्यूज होते हैं फॉर डिफरेंट पोजीशंस, वेरी हार्ड टू फाइंड ए पर्सन। बाहर कह दिया जाता है जी पता नहीं क्या हो गया जी, अप्रोच चल गई। काइंडली रिमेंबर, आई कैन से आई रिस्पेक्ट माय सीनियर्स। यकीन करें कि मेरिटेड वाले को, जैसे आपकी सिलेक्शन हुई है,
यही आर्गुमेंट दूसरों पे भी लागू होता है कि जब आप सिलेक्ट होके आ गए यूनिवर्सिटीज में तो डेफिनेटली मेरिट एग्जिस्ट करता है टू ग्रेट एक्सटेंट, बट डिफरेंस आ जाता है। मेरिट ये नहीं है, मेरिट इज नॉट ओनली हाउ मच जीपीए यू हैव गॉट, हाउ मच परसेंटेज यू हैव गॉट, merit has got its own component. One is your academic achievements, the second is your capabilities, your way of thinking, your behavior, your attitude, which has to be determined by the interview. अब इंटरव्यू में मेरे तो मैं टॉपर हूं, लेकिन इंटरव्यू में मैं अपने थीसिस का टॉपिक भी नहीं बता सकता हूं, पेपर तो दूर की बात है। एक जो आम एक्सपर्ट है, जो कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी नहीं है, वो क्वेश्चन पूछता है तो वी आर नॉट एबल टू गिव देम द गुड आंसर। फिजिसिस्ट तो ठीक है, फिजिक्स के तौर पे हो, केमिस्ट्री वो तो समझ आती, भूल जाता है बंदा। वी आर नॉट फेमिलियर विद द इवन जनरल नॉलेज। काइंडली टेक इट एज ए गुड एडवाइस फ्रॉम मी, प्लीज बी ए टीचर बाय चॉइस। इफ यू आर बाय चॉइस, नाउ बिकम बाय चॉइस। अगर आपने नहीं पहले सोचा, सिर्फ जॉब देखी है, अब आपको पता है कि कितनी लाखों एप्लीकेशंस आ जाती हैं अगर हम चंद पोस्टें गवर्नमेंट एडवर्टाइज करें। एवरीबॉडी इज फॉर टीचिंग, एवरीबॉडी फॉर टीचिंग। क्या हो रहा है हाल, वो आपको थोड़ा सा ज्यादा इल्म है कैसे है। तो अगर आपने अपने आप को डिफरेंट लाना है, यूनिवर्सिटीज आर प्लेसेस, यू आर लकी दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर ए यूनिवर्सिटी वेयर एट लीस्ट यू हैव ए independence in the sense that you can discuss variety of issues with your seniors. You can learn from them, you can learn from the system how to run a small unit of a university. That is your organization. So please have these changes in your mind. Through your attitude and behavior, thinking process should be developed. अब next हम चलते हैं, let's see that how is their attitude, how to change your attitude पर्सनली फ्रॉम द इनसाइड आउट। ये मैंने अपने स्लाइड देख रहे हैं आप, तो ये जब तक नहीं आएगा, अगर आप देखेंगे कि जी नहीं मेरी कुलीग ऐसे कर रही है, मेरे घर के रिश्तेदार ऐसे कर रहे हैं, मेरे दूसरे सीनियर्स ऐसे कर रहे हैं, तो काइंडली आप अपना एटीट्यूड चेंज नहीं कर सके। आप उसी पास्ट एक्सपीरियंसेस में घुस जाएंगे, उन्हीं बुलेट्स में चले जाएंगे, वो कहीं ना कहीं हिट करने लग पड़ेगा आपको। ये थोड़ा सा सोचें इसको मैंने तो बताया मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये देखें, क्योंकि मैं इन हालात से गुजरा हूं। यहाँ तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इन हालात से गुजर के मैंने अपने आप को शेप किया है। तो इन जैसे आप जैसे चैलेंजेस को जो है ना, वो जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ, तो आप की तरह मैं भी इसी तरह सोचता था। लेकिन थैंक्स टू माय सीनियर हु गेव मी द वे हाउ टू डेवलप, और मैं खुद जो है नेगेटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को डेवलप किया है। तो फिर जो ये आप अलग मुझे मेरे गूगल पे भी देख सकते हैं, पूछ भी सकते हैं कि मैंने कैसे कैरियर डेवलपमेंट की और कैसे इन पोजीशंस को किया और अब भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यही बता रहा था कि हमारे सीनियर्स जैसे कमीशन में बैठे हैं सारे, उन्होंने रोल प्ले किए हुए हैं, वही स्कीमें बना रहे हैं, फलानी चीज पीएचडी के लिए ये करें, पोस्ट डॉक के लिए ये करें, रिसर्च के लिए ये करें। कहाँ से और आना है? अगर हम ही इतनी काबिल नहीं है, वी आर नॉट कैपेबल of putting forward our case to the bureaucracy, our case to the government, how can they realize what are our problems and challenges are there? उसके लिए आपको ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, you have to develop a personality like this, कि आप इंप्रेस कर सकें उनको। आपने यूनिवर्सिटी बनानी है, आपने यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को अपग्रेड करना है। इतने PC1s बन के आते हैं जी, अपग्रेडेशन ऑफ लैब होनी चाहिए, इक्विपमेंट नहीं मिल रहा। They don't know how to make the documents. They don't know how to make purchase of the equipment. मोस्टली आपका जो डेवलपमेंट फंड है यूनिवर्सिटीज का, इस वक्त भी मैं आपको बता रहा हूं कि लैप्स हो जाता है। मीन जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो खर्च ही नहीं कर पाते, नॉट एबल टू स्पेंड इट। दैट इज द इशू विच आर कमिंग अप टू। इस वजह से आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। लेकिन आप हैं इस वक्त इस स्टेज पे जहां से अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो आई एम श्योर एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि यूनिवर्सिटीज फिर अपनी जो है वो राइज करना अभी भी कर रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन विद ग्रेटर पेस, विद फास्टर पेस आप ग्रो करेंगे। अगर आप बीइंग यंग एंट्री टू द यूनिवर्सिटी डोंट रियलाइज दिस फैक्टर दैट यू आर इंपॉर्टेंट, you are a university teacher, you have to run the universities by yourself. Even a single personality is important. If you become a teacher by choice, then you have to take each and every type of responsibilities. You have to be. ठीक है? तो definitely
आप इसलिए मेरा प्रोफाइल पढ़ेंगे कि देखें कि मैंने कौन से काम किए हैं, प्रोफेशनल भी किए हैं और ये बाकी काम भी यूनिवर्सिटीज के लिए भी कंट्रीब्यूट किया कि हम हैंडल कर सकते हैं, वी आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग। बाहर की दुनिया आपको देखती है, जो मीटिंग्स होती हैं तो आपको देखते हैं कि ये बंदा कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, कैसे अपने आप के फैक्ट्स को ला रहा है, कैसे अपना केस प्रेजेंट कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद लॉजिक एंड फैक्ट्स, तो तभी सब कुछ होता है ना जी। तो दैट इज एन इशू विच यू शुड टेक इन योर माइंड। सो एटीट्यूड के लिए ये प्रॉब्लम आ गया, ये जो है ना, अब ये सारी तकरीर मेरी जो हो रही थी इस पे हो रही, ये हम सॉरी टू से कि हम टोटली लैग कर रहे हैं, टोटली लैग कर रहे हैं। कोई कहता है जी मैं आ नहीं सकता सुबह, कोई कहता है जी मैं शाम को नहीं बैठ सकता, कोई कहता है जी ये मेरे पास तो आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है। जस्ट यहां मैं बताना चाहूंगा, यू कैन वेरीफाई। व्हेन आई बिकेम द वाइस चांसलर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, ओरिजिनली आई बिलोंग टू यूईटी, जैसे उन्होंने मेरे बताया, I was having 11 independent offices, not responsibilities. I was HEC focal person, I was the director research, I was the director consultancy services, I was the chairman physics department, I was the director laser center, जो अभी भी यूईटी में एक ही है पूरे पाकिस्तान में। इस तरह करते करते ये इंडिपेंडेंट ऑफिसेस थे जो मेरे 11 बनते थे। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, आई एम द फाउंडर ऑफ द यूईटी एंट्री टेस्ट, जो फिर मेडिकल का भी हमने लिया था, मुझे तो नहीं पता था ये मैंने करना है, एंड वी डिड वेल। अभी भी रेपुटेशन है। अब मेडिकल का तो यूएचएस लेना शुरू होगी 4 साल 5 साल से, जब जाहिर है मैंने तो नहीं सारा करना था, लेकिन किया। बताने का मकसद ये है कि हमने इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्सेप्ट किया कि जनाब वी आर रेडी, एंड थैंक्स टू आवर सीनियर, दे से ओ नो नो यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस। तो मेरा तो क्रेडिट सारा जो है मेरे सीनियर्स को जाते हैं, इंक्लूडिंग माय वाइस चांसलर, दे प्रिपेयर मी फॉर दिस। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि लोग, हमने यहाँ से पंजाब में जाके बलूचिस्तान और सिंध में टेस्ट करवाए, इतनी क्रेडिबिलिटी बन गई थी 99 से लेके 2005 तक। और यूईटी का तो अभी भी चल रहा है, क्योंकि 2005 में हमने हेल्थ साइंसेज दे दिया, अब देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन डेवलप की वही फैसिलिटीज हैं जो हमने डेवलप की, उसी फैसिलिटीज पे नस्ट वजूद में आई, सॉरी नस्ट नहीं, एनटीएस वजूद में आई, उसके भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मैं मेंबर रहा हूँ। तो आपने कंट्रीब्यूट करना है विद ऑल ऑड्स। तो आप ही की तरह मैं था तो एक्सेप्ट करता था। आई हैव द ऑनर टू बी द यंगेस्ट मेंबर ऑफ सिंडिकेट विच इज द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ यूईटी इन, जब मैंने ज्वाइन किया एट दैट टाइम। अब तो लेक्चरर आ गए हैं। तो प्लीज ये जो मैंने सामने आपके रखा है, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए आपको वॉलंटियर भी करना पड़ेगा। वॉलंटियर दूर की बात है, लोग उस तरह ही नहीं लेते, ऑफिशियली चिट्ठीबाजी शुरू कर देते कि नहीं नहीं जी वाइस चांसलर साहब मैं बड़ा बिजी हूँ, मेरी तबीयत बड़ी खराब रहती है, घर में बड़े इशू हैं, फलाना जो है उसके पास इतनी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी गो टुवर्ड्स दैट साइड। नो, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल, नेक्स्ट फॉर हु आई एम, नेक्स्ट व्हाट आई हैव। काइंडली ये आप अपने में जनरेट करोगे तो काइंडली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आएंगे, फॉर व्हाट आई डू। तो इसके लिए ये देखें आप, ये एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज आ जाए, आई एम रिस्पॉन्सिबल, जो भी मैं हूं, फॉर व्हाट आई हैव, फॉर व्हाट आई डू, प्लीज एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने ग्रो करना है, अगर आपने ये प्रूव करना है कि यू हैव अडॉप्टेड दिस यूनिवर्सिटी कैरियर बाय चॉइस, फिर वही एम्फेसिस दूंगा, यू हैव टू रन द यूनिवर्सिटी, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दे दी है, आपको एक इन्वायरमेंट दे दी है, एक यूनिवर्सिटी दे दी है, तो काइंडली इसका भी ख्याल कर लें, इसको भी आपने करना है। ये कोई नई बात नहीं है, हम चंद हजार की खातिर एक यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरी तरफ जाते हैं, हमें ये मिल जाए। मैं अपना कैरियर बता दूं, मेरा सारा कैरियर यूईटी लाहौर का है। आई एम ए फिजिसिस्ट, वहां पे इंजीनियर्स थे, मेजॉरिटी थी। दे से कि ये साइंसेस का बंदा आ गया, टाइम केम, अल्हम्दुलिल्लाह दे ऑल रिकॉग्नाइज्ड मी, क्योंकि मैंने पॉजिटिव काम किया, मैंने कैंपसेस भी बनाने में हिस्सा लिया, जो भी कुछ हुआ किया। बता रहा हूं कि आप इसको वेरीफाई करें, ये ना समझे कि डॉक्टर साहब सिर्फ तकरीर करके चले गए। मैंने लिया भी इसलिए है कि ये आपसे थोड़ी सी मेरी डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाए, लेकिन ये नहीं छोड़ा। अभी भी आप देख लें कि अभी भी मैं क्यों कमीशन का मेंबर हूं, और तकरीबन हर कमेटी में नाइस ऑफ देम के मुझे डाला जाता है और मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। तो ये काइंडली इसको लाएं, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं। बिकम ए ट्रू प्रोफेशनल बाय चॉइस एज ए यूनिवर्सिटी टीचर। तो यूनिवर्सिटी टीचर को सिर्फ क्लास नहीं लेनी कि उसके बाद वो एकेडमी चले जाए, आई एम डेडली अगेंस्ट दैट।
या और काम कर रहे हैं, या उसको घर की फिक्र पड़ गई है कि अब घर के मामलात कैसे चलने हैं, तो फिर माय डियर ये हिसाब किताब तो देना है, कहीं कहीं हिसाब होना है, कहीं आपका मैथमेटिक्स आपको करना पड़ना है, और वो जो जात है वो किसी को छोड़ती नहीं। मैं बड़ी एग्जाम्पलें मौजूद हैं कि लोगों ने 8 से 2 बजे तक ड्यूटी, 4 बजे तक, तो 11 बजे फरार हो गए, उसके बाद जितनी दौलत कमाई वो कहाँ गई, किस जगह लगी, वो एक अलहदा स्टोरीज है। फिर जिंदगी गुजर गई अपने आप को डॉक्टरों के हवाले करके कि ये बीमारी वो बीमारी, हुआ क्या जी, हमें तो पता नहीं, हम तो बड़ी ईमानदारी, भाई ड्यूटी में तो ईमानदारी आपने की नहीं, आपकी ड्यूटी 8 to from 8 o'clock to 4 o'clock है, हाउ कम यू कैन गो टू योर होम एट 3 o'clock, कि जी फलाना जाता था, फलाना जाता था, तो फिर आप भुगते, कुदरत का निजाम है। जब हम बाकी एग्जांपल्स कॉपी करते हैं दुनिया की, हम ये भूल जाते हैं कि उनकी ये भी है, ये एथिक्स और मॉरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनसे आप छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। काइंडली एडहर टू देम, इनको पूरा करें, फुलफिल करें, इफ यू वांट टू बी एन गुड एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन इन दिस सोसाइटी। तो अब यूनिवर्सिटीज में अब ट्रेंड शुरू हो गया है कि जनाब टाइम से पहले ही फरार हो जाना है, और उसके बाद ये काम भी नहीं करना, ये भी चेयर में पर्सन करे, ये काम भी सीनियर करे, ये वीसी कौन होता है, मुझे दरखास्तें, एप्लीकेशनें, काइंडली यूनिवर्सिटी टीचर रोल मॉडल बनना है उसे। स्टेप 2 जो है टेक कंट्रोल, जब ये आप करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके यूनिवर्सिटी में, तो आपने लीडरशिप और मोटिवेशन आना है। तो मैं ख्याल है कि मैं आपको ये भी शेयर कर दूं, हियर यू आर यू, सेंटर में आपको यू नजर आ रहा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ओनरशिप देंगे कि आई एम एम्प्लॉय ऑफ जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, या आई एम एम्प्लॉय ऑफ लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, आई एम एम्प्लॉय ऑफ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बाबल, व्हाटएवर यूनिवर्सिटीज, आई हैव टू ओन इट। सारा कैरियर आप वहां लगा दें। मैंने 39 इयर्स लगाए हैं, 37 इयर्स, 2011 में मैं आई बिकेम दी वाइस चांसलर। पूरा टोटल इस दौरान कितनी मुझे ऑफरें हुई होंगी, कितना कुछ हुआ होगा। आई वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन एडमिनिस्ट्रेशन, नेवर लेफ्ट यूईटी, दिस वाज अनदर रिस्पांसिबिलिटी टू लीड ए यूनिवर्सिटी। आई वाज सेटिस्फाइड कि मैंने कंप्लीट कर लिया। तो याद रहे कि मुझे कोई पे ज्यादा नहीं मिली थी, ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूँ, मुझे वही मिला था, वो भी नहीं मिला जो यूईटी में था, बट आई डिड वाइस चांसलरशिप अल्हम्दुलिल्लाह इन ए गुड वे। ये कमीशन भी बनाने वालों में भी मेरा नाम मैंने बताया कि मैं फाउंडर मेंबर और हिस्सा शामिल है, जिससे आप आज मुस्तफीज हो रही हैं, आप उसको बेनिफिट हो रहा है, आपको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके और बड़े सारे इनिशिएटिव्स हैं जो आपको पता चल जाएंगे। डू विजिट दी वेबसाइट। तो पहले ओनरशिप दें अपनी, जब मैंने ये काम करना है, आई एम ए यूनिवर्सिटी टीचर बाय चॉइस, एंड देन आई एम ऑल्सो गिविंग एन ओनरशिप टू माई इंस्टीट्यूट, माई यूनिवर्सिटी, देन यू हैव ए मिशन, व्हाट यू आर गोइंग टू डू। इस योर इंडिविजुअल यू के साथ लिंक है, किसी और हमसाए के साथ, कोई चाचे कजन किसी के साथ नहीं है। प्लीज बी केयरफुल, यू हैव टू मेक मिशन। मुझे भी शौक था सीएसएस, मैंने भी क्लियर करने की कोशिश की, हाँ बन जाऊं अफसर, बाद में सोचा मुझे यूनिवर्सिटी टीचर ही बनना है, बाय चॉइस में आया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से यू हैव नोटिस आई हैव ए मेरिटोरियस प्रोफेसर, आई एम द फर्स्ट टेन्योर्ड प्रोफेसर टू बी अपॉइंटेड एट वीसी। अब तो हुए माशाल्लाह, होंगे आप भी होंगे। तो ये इन पाकिस्तान, तो ये देख लें चीजें, यू मस्ट हैव ए मिशन। इस दौरान डिसिप्लिन, फिर आप में डिसिप्लिन आना चाहिए कि ड्यूटी इज ए ड्यूटी, ठीक है, जो मैंने अभी की, एंड देन यू हैव टू हैव ए वैल्यूज। अब तो ये यूनिवर्सिटीज में हो रहा है, ये मेरा स्टूडेंट है, ये आपका स्टूडेंट है, इसको मैंने नहीं बुलाना, उसको मैंने नहीं बुलाना। इतने हम क्रिमिनल एटीट्यूड के साथ यूनिवर्सिटी में, मैं वर्ड बोल रहा हूं, हो गए हुए हैं कि हम किसी के कैरियर से खेल जाते हैं। ये हो रहा है, लेकिन काइंडली आपने नहीं, आज मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, आपको ये लेक्चर दे रहा हूं, आपने नहीं ऐसे करना। आपने यूनिवर्सिटी टीचर बाय चॉइस आना है, किसी के साथ बदले नहीं लेने। इसलिए उस टीचर के साथ बैठता था। हमारी यूनिवर्सिटीज इस वक्त इस चीज का प्रॉब्लम्स में है कि हमने अपने आप को ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग करनी है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल पार्टिसिपेंट टू गिव सीरियस थॉट टू दिस इशू। मैं आपको अपने दिल की आवाज आपके तक पहुंचा रहा हूं। हम इतने छोटी हरकतें करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे हमें फेस करना पड़ता है कमीशन में इधर उधर कि ये क्या बंदा प्रोफेसर कैसे भी, ये किसी को क्यों चांस नहीं दे रहा है, ये क्यों इस तरह बिहेव कर रहा है, ये कोई तेरी मेरी लेक्चर लेवल से लड़ाइयां हो रही हैं, सिस्टम प्रोफेसर लेवल से। मैं चेयरमैन हूँ, ग्रुप बने हुए हैं, प्लीज इनसे अवॉइड करें। हम इस वक्त बड़े ही एक क्या कहना चाहिए
एक बड़े अजीब पीरियड से गुजर रहे हैं। आवर यूनिवर्सिटीज को भी हम आ रहे हैं, लेकिन काइंडली अगर हम इन चीजों को सीरियस ले लेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटीज इस तरह इंशाल्लाह और ज्यादा, जैसे मैंने पहले कहा, और अच्छे तरीके से स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी। मैं ये है कि चंद लोगों में मैं भी शुमार होता हूँ, सीनियर प्रोफेसर में, जो वर्ल्ड रैंकिंग के रिव्यूअर हैं। चंद हैं वो पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ। तो हम अपनी यूनिवर्सिटीज को रैंक तो नहीं कर सकते, दुनिया को करते हैं। तो जो हमें कमेंट्स आते हैं ना, ये उसकी आपको थोड़ा इंटेंसिटी नजर आ रही होगी। इसको लेबोरेटरी में नहीं घुसने देना, ये इक्विपमेंट मेरी जेज में मिला था, मुझे ये इक्विपमेंट मुझे ससुराल ने दिया था। दीज आर आवर एटीट्यूड इन यूनिवर्सिटीज नाउअडेज। खुदा के लिए आप इसका शिकार ना हो, आप इन स्टेप्स को देखें और आगे चलें। इसके लिए ये ओनरशिप से लेते हैं, मिशन, डिसिप्लिन और वैल्यू। यू किसी की एग्जांपल मत लें कि वो ऐसे करता है, वो ऐसे करती है, मैं क्यों ऐसे करूं, मुझे फलाने ने ये कहा था, मुझे ये। काइंडली गेट रिड ऑफ ऑल दीज बुलेट्स जो मैंने पहले आपको, अब आपको आएगा कि मैंने आपको एनवायरनमेंट नेगेटिव क्यों कहा था। कुछ आपकी बुलेट्स आपको क्रिएट करेंगे, कुछ खुद यू विल बी डूइंग योरसेल्फ, क्योंकि आप उनसे बच नहीं रहे हैं ना। तो बच नहीं रहे तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर भी उसी तरह डिटरमिन हो जाएगा। आप भी लोगों को नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहना सिखा देंगे, तो या सिखाएंगे। तो प्लीज हैव दिस इन योर माइंड। ये मैंने आपको एक चार्ट दे दिया, टेक कंट्रोल ऑफ ऑल दीज थिंग्स। यू कैसे? कंट्रोल ऑफ यू थ्रू ओनरशिप, मिशन, डिसिप्लिन एंड वैल्यूज। इसकी बहुत कदर है, ये वैल्यूज। बाहर हम एग्जाम्पलें देते हैं, एक्चुअली हमें भी ऐसे ही होना चाहिए, हमें भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें भी परहेज करना चाहिए कि किसी को नुकसान पहुंचाएं, उसको हर्ट करें, किसी की फीलिंग्स को, किसी की कैरियर को, किसी चीज को। वी शुड बी हेल्पिंग ईच अदर, अपने आप को हेल्प करना सीखें। नेक्स्ट आता है जी, हाउ टू चेंज योर थिंकिंग। चेंजेस कम फ्रॉम ऑब्जर्विंग लॉजिकली इन एवरी सिचुएशन। अगर आप लॉजिकली आप उस पे पहुंचे हुए हैं कि हाउ टू चेंज योर थिंकिंग, आप थिंकिंग चेंज कम फ्रॉम ऑब्जर्विंग लॉजिकली इन एवरी सिचुएशन। मुझे कैसे करना चाहिए, जब आपके जेहन में होगा मैंने पॉजिटिव करना, फिर आपको पॉजिटिव सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है जी, ये है। नेक्स्ट इसका क्या है? ऑब्जर्व योर थिंकिंग। ये थिंकिंग कर रहे हैं और उसको ऑब्जर्व करें, कैसे, हाउ द पीपल आर बिहेविंग अराउंड यू, हाउ द सिस्टम इज रिस्पॉन्डिंग यू। ये सारा आपने ऑब्जर्व योर थिंकिंग, ये करते रहेंगे। उसी में जो आपने अपने यू को चेंज कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करेंगे, अपने आप को टाइम दें। आप हंसें भी, आप अपने आप को खाना भी खिलाएं अच्छी तरीके से, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को भी डेवलप करें। बट यू हैव टू चेंज योर थिंकिंग प्रोसेस ऑल्सो। व्हाट कैन आई डू टू डिफ्यूज दिस? ये सिचुएशन आ गई, इसको डिफ्यूज कैसे करना है? आपने सोचना शुरू करना है इन ए पॉजिटिव वे। वही जो सब डिस्कस हुआ है, आई रिफ्यूज टू लेट दिस हुक मी। जब ये है थिंकिंग कि आपको ये चीज हुक नहीं करेगी, आप ठहर नहीं जाएंगे, आप रुक नहीं जाएंगे, आप इस प्रॉब्लम को इस तरह एक्सेप्ट करेंगे एज ए चैलेंज, नॉट एज ए नेगेटिव ऑन इफेक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी। दिस इज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। सिचुएशन को देखें कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आपने चेंज करने जा रहे हैं अपनी थिंकिंग प्रोसेस से। सो टुमारो इट विल लुक वेरी डिफरेंट। अगले दिन देखेंगे इट विल बी वेरी डिफरेंट एट ऑल, एंड देन आई वुड लाइक टू बीट देम। दिस इज योर डिटर्मिनेशन फाइनल, कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक इशू आ गया है और इसको मुझे नुकसान नहीं से पहुंचना चाहिए। दिस ऑल वेरी इंटरेस्टिंग, ये इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी कि कल कैसे डिफरेंट होगा, एंड मैं इसको नाकाम बनाऊंगा। डिटरमिन के इट इज गोइंग टू हर्ट मी, आई हैव टू मेक इट, keep this away from my personality. It sucks to be him. उसी को जाए जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैनेज योर सेल्फ टॉक। इफ यू थिंक, ये सेल्फ टॉक है जो अपने आप में आप उसके बाद आपने करनी। थिंकिंग प्रोसेस के अंदर ये हो रहा है, इफ यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। सो यू हैव टू डिसाइड यू कैन और यू कांट। जब ये डिसाइड कर लें तो फिर यू आर वेरी राइट। यू शुड, जो भी आपने डिसाइड किया, यू आर राइट। ये है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। थिंक कर लें आप जैसे बताया गया है, और इसी तरह फिर आप उस पर जब भी जो डिसीजन करें,
वो आप उस पे फर्मली स्टैंड आउट करें कि यू आर राइट। ये खैर हेनरी फोर्ड ने कहा है, आप भी ज़हन में रखें, देख लें। पॉजिटिव थिंकिंग आ गई, नेगेटिव को तो ऑब्वियसली गड़बड़ हो गई। अब आगे हाउ टू चेंज योर बिहेवियर। बिहेवियर चेंजेस टेक ट्रू असेसमेंट, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन। तो हैव टू चेंज दी बिहेवियर। कैसे असेस करें कि आपको क्या करना चाहिए था इस सिचुएशन में, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, फिर डिटर्मिन हो जाए कि मुझे ऐसे वी हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन विद सर्टेन डिसिप्लिन विदाउट वायलेटिंग एनी अदर वैल्यू, मोरल वैल्यूज एंड एनीथिंग एल्स। एक सिचुएशन आती है चूज योर बिहेवियर, रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिबल। ये है वो एटीट्यूड और बिहेवियर में फर्क जो आपको दिखा रहा हूं मैं। रिएक्टिव होना है या रिस्पॉन्सिबल होना है। ये आया है कोई somebody is entering into my office, तो वो जनाब आते ही शाउट कर रहा है मेरे पे, should I shout? Do you expect कि as a vice chancellor, as a rector, I should also be shouting at him, at her? No, I should behave as a responsible person. I should request him to sit down, listen to him, show him the sympathy, and then a stage will come while discussing with him or her, you will be able to express empathy with the concerned person. That is the responsible attitude. And that is determining your behavior, जो ये बिल्कुल नीचे आ रहा है आपके सामने. So it should not be reactive, it should be a responsible. Stimulus, response. That is the way forward. Stimulus, my choice. My choice क्या है? My response. My response, ये सारा आपके बिहेवियर पे आ रहा है. Steps toward changing behavior. Unconscious, incompetence. इसको चलते जाएं, मुख्तलिफ स्टेयर्स हैं. नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, देन कॉन्शियस कॉम्पिटेंस. कॉन्शियस और कॉम्पिटेंस, यू आर फेमिलियर विद दिस. अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, ये इनकॉम्पिटेंस था, यहाँ पे अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस. यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे द न्यू यू आर. दीज आर 4 स्टेप्स बाय विच यू कैन चेंज योर बिहेवियर, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आपको रिएक्टिव होना है या रिस्पॉन्सिबल होना है. इससे आप आगे चले जाएंगे. द न्यू यू आर, दैट इज द होल इशू जो हमने यहाँ न्यू बनना है. तो काइंडली इस ट्रेनिंग का मेन पर्पस भी है कि अब आप न्यू यू हो जाए, आपका थिंकिंग प्रोसेस अब स्टार्टअप हो जाए और करें. इन्फ्लुएंस योर एनवायरनमेंट, एड पॉजिटिव बिहेवियर, रिप्लेस दी बैड हैबिट्स. ये बड़ी छोटा सा फिक्रा लिख दिया मैंने, रिप्लेस दी बैड हैबिट्स. ठीक है. अभी किसी दफ्तर की मैं बात कर रहा था, तो वहां पे शिकायत वो कर रहा था बॉस से कि जी फलाना जो है बंदा मुझे कहता है मेरा बैग उठा के लाओ बाहर, तो मैं क्यों लाऊं. अब ये है, उसको बैड हैबिट कहेंगे आप, कि आपका ये इशू डिस्कस करने वाला नहीं था. अगर किसी की आप हेल्प कर सकते हो, वो उस दिन अच्छा फील नहीं कर रहा, तो ये जो है एड पॉजिटिव बिहेवियर, रिप्लेस दी बैड हैबिट्स. ये भी बड़ा डिफिकल्ट काम है, बैड हैबिट्स को डिटरमिन करना और फिर इनको छोड़ देना, कि हमें इनको छोड़ना है, इन बैड हैबिट्स को. ठीक है. काइंडली इसको, बेहतर है कि आप इसको छोड़ दें तो बेहतर होगा. रिप्लेस दी बैड हैबिट, क्योंकि ये ही आपका पॉजिटिव बिहेवियर डिटरमिन करेगा. स्प्रेड ए स्माइल अराउंड. हम यहाँ हंसना छोड़ दिया हुआ है. नो वे. हम तो ऐसे लगता है जैसे बड़े सारे प्रॉब्लम्स का शिकार है. सुबह सुबह तो वही मैंने कह रहा हूँ ना कि टीचर के तौर पे हम जब कर रहे होते हैं तो क्या हमारा हाल होता है. स्प्रेड ए स्माइल अराउंड, हल्की सी मुस्कुराहट. हाउ आर यू, फाइन, लुकिंग वेरी गुड. ये सारे छोटे से जेस्चर्स हैं जो आपने करने, जो हमने छोड़ दिए हुए हैं. यूनिवर्सिटी टीचर ऐसे सीरियस लग रहा है. इट्स नॉट ए नॉन सीरियस एटीट्यूड कि आप किसी को स्माइल देते हैं, इट्स ए नॉन सीरियस. नो, इट्स ए पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. स्प्रेड ए स्माइल अराउंड. ये तो आप फौरन शुरू करें एज ए टीचर. क्लास में जाएं, कोई बच्चा मिले, स्माइल दें, बजाय इसको कोई एटीट्यूड आपका ऐसा हो कि वो बच्चा बेचारा चले जाओ. फिर क्लास में बिहेवियर, ये मैं फिर एटीट्यूड बिहेवियर की बातें कर रहा हूँ. स्प्रेड ए स्माइल अराउंड. स्प्रिंकल सम पॉजिटिव ऑन द नेगेटिव. काइंडली कंट्री की भी तारीफ कर दें, और कुछ स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने उसकी तारीफ कर दें, और को आपके सीनियर्स ने आपने अच्छी बात की, आपके वाइस चांसलर ने अच्छी बात की, आपके डीन ने अच्छी बात की है, तो सम पॉजिटिव ऑन द नेगेटिव. उन्हें होप दें, उन्हें आप तैयार कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, ताकि जब आपकी तरह वो सोसाइटी में जाएं, वो जो है ही और शी शुड बी ए यूजफुल सिटीजन फॉर ए कंट्री. जो दुनिया कर रही है ऐसी बात नहीं कि नहीं है, हमें भी इस तरफ सोचना है. तो स्प्रिंकल सम पॉजिटिव ऑन दी नेगेटिव.
फोकस ऑन द गुड ऑफ ईच डे। अल्लाह करे ये वो है जो हमारी इस्लामी तालीमात के मुताबिक है। हमारे दूसरे रिलीजन भी कहते हैं कि हम अच्छी चीजों, दिन का अच्छा आगाज करें, जेस्चर अच्छा शो करें, अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग कहें, अपने स्टूडेंट्स को जिनको आप ज्यादा अच्छा समझते हैं उन्हें गुड मॉर्निंग मैसेज भेजें। आजकल तो सोशल मीडिया आ गया, अब तो ये हालत आ गई कि लोग मुफ्त में भी कॉल नहीं करते, मुफ्त में भी मैसेज भेजने को तैयार नहीं है। नो नो नो, अब वो भी वक्त आ गया है कि पहले तो था ना जी हमारे पैसे लगते हैं, तो अब तो पैसे के बगैर भी हम नहीं भेज रहे। ये स्मॉल जेस्चर है जो भेजा करें, अपनी सीनियर्स को भेजा करें, और यू सर और यू मैडम ना, ये मेरा ख्याल है इसको मैं रवाज देना पड़ेगा। प्लीज फोकस ऑन द गुड ऑफ ईच डे। विश करें एक दूसरे को आज गुड डे, क्लास में जाएं गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम और यू, लगता है बड़े सारे फ्रेश बैठे हैं, वेरी गुड, मैं क्लास हूँ। ये जेस्चर्स नहीं हम शो कर रहे, हम अपने प्रॉब्लम साथ लेके आ रहे हैं। When we joined the career, our seniors told us कि घर के मसले घर छोड़ा करें और ऑफिस के मसले ऑफिस में छोड़ जाया करें। ये शायद नहीं हो रहा, तो आप फोकस ऑन द गुड ऑफ ईच डेज। हर दिन को आप अच्छी तरीके से वेलकम करें, हर एक के लिए अच्छा विश करें और खुद भी देखें कि आज मेरा दिन ठीक ही गुजरेगा। उसमें थोड़ी बहुत ही लेगिंग्स भी आ सकती हैं, थोड़ी बहुत ही प्लस पॉइंट भी आ सकते हैं, बट ट्राई टू कंसिडर इट इज अ गुड डे फॉर यू। बाहर यही होता है, बाकी चीजें हम कॉपी करते हैं, काश हम ये चीजें भी कॉपी कर लें। ये हमारे भी दीन का भी हिस्सा है कि अल्लाह की नमाज पढ़ें सुबह और विश करें कि अल्लाह मेरा आज का दिन अच्छा गुजरे। स्टे आउट ऑफ द फीडिंग फ्रेंजेस। ये जो चुगली, तोहमत और क्या होता है दूसरा, हम बदगुमानी फैलाते हैं, तीनों ये तीनों काम हम करते हैं जो हमारे कुरान, हर रिलीजन में, लेकिन मैं कोई मुसलमान हूं, मैं कुरानिक बताऊंगा कि कुरान में मना किया गया है, इट्स एन ऑर्डर कि चुगली ना करें, बदगुमानी मत फैलाएं, ठीक है, और ना ही किसी पे तोहमत लगाएं। हम ये सारे काम लाइल्मी में कर जाते हैं। ये बात क्यों डिस्कस हो रही है, क्या ये मेरे, ये आपने पढ़ा है, आई थिंक यू नो मोर देन मी इन दैट सेंस, कि भी कि ये बात करने वाला क्यों कर रहा है, क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं तो क्यों कर रहा है वो, क्या इस बात से मुझे फायदा या नुकसान है, नहीं, फिर भी इस सारे टेस्ट आपने पढ़े हैं, पता नहीं सुकरात से एट्रीब्यूट किए जाते हैं, लेकिन हमारा मजहब भी हमें ये कहता है कि ये काम ना करें। उसकी तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है कि हमने चुगली नहीं करनी, कानिक ऑर्डर्स हैं, इसमें हर किसी फिरकेबाजी का भी तल्लक नहीं, लेकिन काइंडली इसको देखें। ये है वो फीडिंग फ्रेंजीज कि मैंने आगे दास्तान सुना दी, आज उसको साथ उसके साथ बैठा था, उसके साथ बैठी थी, आज उसने ये बात की थी, उसने वो बात की थी, बहरहाल। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, से प्लीज एंड थैंक यू। ये हम घरों में भी शर्मा जाते हैं, बच्चा ग्लास का पानी लेके आता, बेटे पानी दो, उसको हम थैंक यू नहीं कहते, या उसको ये नहीं कहते प्लीज मुझे पानी तो ला जाओ, सर्वेंट को भी नहीं एक्सटेंड करते ये कर्टसी। ये है हमारे बिहेवियर, ये है हमारे एटीट्यूड्स। हम एटीट्यूड्स में डिटरमिन होंगे कि हमें किसी का शुक्रिया अदा करना है और किसी से मेहरबानी करनी कि मुझे प्लीज करके पानी दे, या थैंक यू फॉर योर गिविंग अस सपोर्ट, तो फिर मेरा बिहेवियर ऐसे होगा ना, उसके जेस्चर होगा, मैं स्माइल दूंगा। ये रिवाज है ही नहीं। किसी ने आपको आ गया तो प्लीज भी नहीं कहना और थैंक यू भी कहना, हम शर्माते हैं। उर्दू में कह दिए शुक्रिया, मेहरबानी करें, मुझे पानी दे दें, ये जेस्चर जो घरों में होते थे, अभी भी हैं बाज घरों में, और हमारे भी अब और भी आएंगे। आप भी इसको रिवाज दें, से प्लीज एंड थैंक यू इन एवरी सिचुएशन। इफ आई एग्री विद यू, यू कैन से मी थैंक यू, इफ यू डोंट एग्री अगेन से थैंक यू, बिकॉज मैंने कंट्रीब्यूट तो किया ना आपके साथ डिस्कशन में। आर्गूमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, बट एट द एंड आप देखें हमें एज ए पर्सन, गुड पर्सन डील करना है। हमारा मजहब भी यही सिखाता है। जहन में रखे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को, वो सारी चीजें करते थे। तो भाई प्लीज ये आज से कहना शुरू कर दें, प्लीज एंड थैंक यू, मेहरबानी या शुक्रिया। ये उर्दू में के इंग्लिश में के इट्स गुड एज, ये आपका डिटरमिन कर रहा है पॉजिटिव बिहेवियर। ये काइंडली इसको नोट जरूर करें, ये आपको दे भी देंगे आसिम मुनीर साहब कि ये आप ले लें, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने तो पहले कहा कि मैं एम नॉट ए मोटिवेशन स्पीकर, मैं तो आपको अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। फिर प्रैक्टिस एम्पैथी, ये वो एंड पॉइंट आ गया जो मैंने आपको पहले कहा था कि एम्पैथी को एक्सप्रेस करना और प्रैक्टिस करना शुरू कर दें एज ए यूनिवर्सिटी टीचर, दैट इज वेरी मच नीडेड। कई सारे लोगों की जिंदगी आप बदल सकते हैं। कई स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करते हुए, मेरी ओपन डोर पॉलिसी रही, अब भी इधर भी मैं डायरेक्टर हूं, पहले वाइस चांसलर भी था, मेरी ओपन डोर पॉलिसी है कि स्टूडेंट कैन कम एंड डिस्कस विद मी, कोलीग्स कैन कम एंड डिस्कस विद मी, शो एम्पैथी टू देयर इश्यूज। अब आपको इंपॉर्टेंस इसकी नजर आ रही होगी कि हमें आखिर में एज ए यूनिवर्सिटी टीचर इसी एज से शुरू कर देनी है कि हम प्रैक्टिस करें एम्पैथी।
डू होप ये एम्पैथी को अब आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये हमारे में बहुत मिसिंग है पार्ट हमारी पर्सनैलिटीज का। हम सिंपथीज की तरफ कम आते हैं, एम्पैथी तो बड़ी दूर की बात। तो प्लीज प्रैक्टिस एम्पैथी एंड प्रैक्टिस एम्पैथी। हमारे रिलीजन के एन मुताबिक है। जब हम कहते हैं गम में हो तो जब वक्त आता है तो भाग जाते हैं सारे बहन भाई भी दूसरे भी, कि बस ठीक है अपनी निबेड़ो, कोलीग्स तो सबसे पहले ये इसको बदलें। एवेल्यूएट योर बिहेवियर। इन चीजों के बाद अपना बिहेवियर अगर आप एवेल्यूएट करेंगे, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू हैव ए पॉजिटिव बिहेवियर। और उसके इफेक्ट जिनसे आप डील करेंगे, जो भी आपसे इंटरेक्शन में आएगा, मे बी स्टूडेंट, मे बी योर कोलीग, मे बी योर बॉस, मे बी योर सबऑर्डिनेट स्टाफ, मे बी जनरल पब्लिक, विल फील रिलैक्स्ड। उन पे आप कंट्रीब्यूट करेंगे इन ए पॉजिटिव वे। सो डेफिनेटली नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरी तरफ वही ऊपर वाली बात है, कॉम्प्लीमेंट भी करना सीख रहे। छोटी सी आपकी हेल्प कोई कर देता है, उसे कॉम्प्लीमेंट करें, उसे टेक फॉर ग्रांटेड। ये मुझे सलाम करता है, इसको लगता है कोई मतलब होगा, ये थिंकिंग मत लाएं, दिस इज नेगेटिव थिंकिंग। प्लीज कॉम्प्लीमेंट, जो भी करता है उसको अप्रिशिएट कर दें। वही पहली वाली बात कि जनाब अप्रिशिएट करना सीखें, वरना नेगेटिव इन्वायरमेंट में खुद भी आप आ जाएंगे और दूसरे भी उसको उसी तरह अडॉप्ट करेंगे। सो नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू कॉम्प्लीमेंट। मोर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस बिफोर यू से एनीथिंग। ये आसम मुनीर साहब 5 मिनट है मेरे पास। आसम मुनीर साहब। यस सर, आप 5 मिनट हैं सर, प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो मोर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस क्या है? बिफोर यू से एनीथिंग टू एनीवन, आस्क योरसेल्फ 3 थिंग्स। ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये मुझे नहीं पता, स्लाइड मैंने बनाई थी, मुझे ज़हन में नहीं रहा था, ये आ गई है। ये उन्हीं पे बेस है, मैं तो आपको सिर्फ शेयर कर रहा हूं। इज इट ट्रू? कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है? आजकल तो भरमार है दरखास्तों में, जो मर्जी जाली दरखास्तें दे दो, जाली नाम से दे दो, जाली टेलीफोन आ जाते हैं आपको, आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला, आपका फलाना होने वाला है। नंबर 2, इज इट हार्मफुल? नंबर 3, इज इट नेसेसरी? ये तीनों चीजें डिटरमिन करेंगी कि आप अपने आप को देखें कि आप कहां पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपने कहा कि मैं सुना रहा हूं आपको बात, आप सुन रही हैं, आपके लिए हार्मफुल है, मैं कहूँ चलने दो। इज इट नेसेसरी? कोई बात नहीं, टाइम है सुनने की, इसकी नहीं। ये 3 चीजों पे, 3 पैरामीटर्स पे प्लीज एडहर करें। एडहर का मतलब आप समझते हैं, इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो आप उन 3 चीजों से, चुगली से, तोहमत से और बदगुमानी से बच जाएंगे, जो बहुत बड़े गुनाह हैं जिसको हम रोजाना करते हैं, इंक्लूडिंग मी। तो काइंडली ये वेरीफाई कर लीजिएगा, इज इट ट्रू, इज इट हार्मफुल? मेरे कंसर्न नहीं, मैं भी वो बात को फैला रहा हूं किसी से सुन के, आपसे सुन के आगे फैला दी। इज इट नेसेसरी? क्या ये जरूरी भी है? ठीक है, तो ये जो है, इन 3 चीजों पे आप गौर करें। उसके बाद पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए की प्रोमिसेस, ये हमारे इस्लाम का है कि अपने वादे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा किया। की प्रोमिसेस, हम कसमें खा के फिर जाते हैं। कई ऐसी शिकायतें सोसाइटी में भी आपको आएंगी, बहन भाई में लड़ाई होगी, इसने तो ये कसम खाई थी, खाना कब आके साए के तले, तो ये कर दिया। अब की प्रोमिसेस, हैव ए फॉरगिविंग व्यू ऑफ पीपल, लोगों को माफ कर दिया करें, मत पालें। कोई पता नहीं जिंदगी कब एंड हो जाए, और कितने कितने बड़े मिटे नामियों के निशान के। खली दुबई वाला फौत हो गया, एक उससे पहले फौत हुए, पता नहीं दुनिया के तमाम बड़े होटलों का मालिक था। तो एक कैसे क्या हुआ, एक आम सी गुमनाम कब्र मिली उसे, लेकिन याद क्या रह जाता है कि उसका व्यू कैसा था टुवर्ड्स अदर्स। वो कैसे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, ये हम अपनी तरह से नहीं ला रहे। फॉर गिविंग व्यू ऑफ पीपल, लोगों को माफ कर दिया करो। कीप एन ओपन माइंड विद चेंजेस, जो चेंज आ रही है ओपन माइंड से करें। अब बच्चों का पैटर्न चेंज हो गया, पहले तो था कि बच्चे बैठते थे बड़ों के पास, अब क्या हर को अपने मोबाइल लेके बैठा होता है। हम बातें करते हैं, अब खाना नहीं माँ ने ठीक पकाया, तो पहले हमें जरूरत नहीं होती थी, सारे बहन भाई बांट के इकट्ठे खाते थे। अब चेंज आ गई, हमारा अपना अपना खा रहा है, अब डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, और उसके बाद भी एक खाना अब नहीं है, नई चेंज ये आ गई है, हर को अपना मंगवा रहा है। मैंने ये वो पिज्जा मंगवा लिया है, मैंने ये बर्गर मंगवा लिया है। तो ये वो है कि भाई उसको एक्सेप्ट करें हम। नाउ द लाइफ इज चेंजिंग विद चेंजिंग स्टाइल्स। अब हम इसको मानने को तैयार नहीं, अब इसको कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, हमने किया था तो उस वक्त हमारे बड़ों के लिए भी हम चेंज थे। ठीक है, हमारे जमाने में तो हमारे बड़ों के पास तो साइकिल होता था, फिर मोटरसाइकिल आ गया, फिर गाड़ियां आ गई, माशाल्लाह गाड़ियां भी ऐसे एक से एक बढ़ के। कीप एन ओपन माइंड विद चेंजेस, देन काउंट टू 1000 इफ नेसेसरी। कोई चीज आप किसी को कहना चाहते हैं,
प्लीज, या किसी से बदला लेना चाहते हैं, या आपका व्यू फॉर गिविंग नहीं है, 1000 जरूर गिन लें। डेफिनेटली आप इन ऊपर वाली चीजों की तरफ वापस आएंगे कि यार ये नहीं बनता, हमें इसे नहीं करना चाहिए। सी क्रिटिसिज्म एज अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। अगर आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते तैयबा भी देखें, मैं तो आलम नहीं हूं, लेकिन आप देखें उन्हें मोहसिन इंसानियत क्यों कहा जाता है, कि वो क्रिटिसिज्म को अपॉर्चुनिटी समझते थे इम्प्रूव। बावजूद पैगंबर आजम होने के सुनते थे शायद सुलह देवी, आपको याद हो कि डिस्कशन है, ये तो बड़ी सिंपल कोटेड और ऑथेंटिकेटेड चीजें हैं, तो हम करते हैं ये। हम तो कहते हैं इसने क्रिटिसिज्म की ऐसी तैसी, अब सारी उम्र उसके दिल में कीना रखना है जो हमें इस्लाम ने मना किया, और फॉरगिविंग व्यू तो आना ही नहीं उस बंदे के बारे में। ऐसी तैसी एप्लीकेशंस भी देनी है और वीसी साहब को भी दे देनी है। वीसी साहब भी अगर तो हैं, वो भी ट्रेंड आपकी तरह मेरी तरह तो कुछ वापसी तो होगा नहीं, कि ट्रेन नहीं तो वो भी दूसरी तरफ शुरू हो जाएंगे लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से, चलो इस तरफ एक्शन ले लो, ये काम नहीं होने चाहिए। सी क्रिटिसिज्म एज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव, देन कल्टीवेट योर सेंस ऑफ ह्यूमर। छोटे छोटे जेस्चर शेयर किया करें, छोटे छोटे लतीफे सुना दिए, अच्छा हो गया, उसने ऐसे कहा था, उसने ऐसे क्यों कहा था, ह्यूमर आप समझते हैं, कल्टीवेट योर सेंस ऑफ ह्यूमर, ताकि एक अच्छे इंसान के तौर पे आप पोर्ट्रेट हों बिफोर योर स्टूडेंट्स, योर कोलीग्स, योर एडमिनिस्ट्रेटर्स, योर बॉसेस, योर स्टाफ, सबऑर्डिनेट स्टाफ, सबके सामने सेंस ऑफ ह्यूमर जरूर लाएं। आपकी मेहरबानी। सिर्फ मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, शायद आप देख लें। रिमेंबर, वॉच योर डेफिनेशंस। अब मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस फॉर्म में आ रहा हूं। आपने जो अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं ये पिछली सारी टॉक के दौरान, अब आप डिफाइन करने जा रहे हैं अपने आप को। यू विल बी बिकमिंग ए पॉजिटिव and a useful person and a useful teacher and motivated teacher, becoming as a leader। कल को आपने डील करना है एडमिनिस्ट्रेशन को, अभी से शुरू कर देना आपने। डिफाइन योर डेफिनेशन, ये सारी आपने डिफाइन करनी है। दे बिकम थॉट्स, ये किसी का है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दे बिकम थॉट्स, क्योंकि आपकी डेफिनेशन आपके थॉट्स बनते हैं, थिंकिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। वॉच योर थॉट्स, अब आप थॉट्स को अगर वॉच करेंगे तो देन दे बिकम वर्ड्स, भी आप बोलेंगे। When they become words, watch your words। बोलते हुए किसी के पता होना चाहिए कि इन लफ्जों से किसी की जिंदगी चेंज हो जाएगी या किसी की जिंदगी वस हो जाएगी। प्लीज, and those words they become actions, and watch your actions, they become your destiny। ये क्यों डेस्टिनी कहा है? इस दुनिया में जो करेंगे वही पाएंगे, इन ए डिफरेंट शेप, इन डिफरेंट फॉर्म, लेकिन ये होगा। तो आज जो आप किसी के बारे में वर्ड्स बोल रहे हैं, रिमेंबर दैट मे बिकम योर डेस्टिनी। अगर अच्छे वर्ड्स हैं, अच्छी डेस्टिनी होगी। अगर अच्छे वर्ड्स नहीं हैं तो जाहिर है क्या होगा, और लोगों में जो है वो कैसे फीलिंग्स आएंगी आपके बारे में, पॉजिटिव या नेगेटिव। द चांस इज योर। विद अ बैड एटीट्यूड you can never have a positive day at all, at all। आप BMW गाड़ी में आए और एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रह रहे हो, हर दुनिया की सहूलत हो, अगर आपका बैड एटीट्यूड है तो यू कैन नेवर हैव ए पॉजिटिव डे एट ऑल। ये सारा का सारा मैं आपको इसका जस्ट बता रहा हूँ, खुलासा बता रहा हूँ, मेन थीम बता रहा हूँ कि आपका अगर बैड एटीट्यूड है, आप किसी शक्ल में पॉजिटिव डे नहीं हो सकता। विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड you can never have a bad day at all। you will feel always encouraged, you will feel always motivated, you will always feel a satisfied person। ये मैं लफ्ज बोल रहा हूं, satisfied person। ये नहीं कि दौलतों के अंबार लगे हुए और गोलियों के भी अंबार पड़े हुए जो आप खा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, सो रहे हैं आपने तो ये सुपर शो किया हुआ है। बैड एटीट्यूड सिर्फ इतना नहीं कि मैंने बोला कैसे, वो सारी जो डिस्कशन आपके साथ हुई है वो सारी बैड एटीट्यूड में आ गई, तो वो आपका बिहेवियर डिटरमिन कर रहा है। ठीक है, ना चाहते हुए भी इनहेरिटली आप सारी चीजें वो कर रहे होंगे। सो विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड यू कैन नेवर हैव ए बैड डे, रिमेंबर इट। हाँ, चूज पॉजिटिव लिविंग, एटीट्यूड, बिहेवियर, थिंकिंग। वही बात वापस आ रही साइकिल, एटीट्यूड, बिहेवियर, थिंकिंग। पॉजिटिव लिविंग करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए, और अपनी इस दुनिया के लिए भी बेटर वर्ल्ड बनाने में अपना रोल प्ले करें। दैट मे बी स्मॉल रोल बट इट इज ए वैल्यूएबल रोल। अब थोड़ा सा आपका टाइम दूंगा, ये कोर वैल्यूज नहीं है इसलिए आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। दोस्त जाहिर है इसको कॉपी करके लोगों को बता सकते हैं, ये तो स्प्रेड करना है हमने, इस आवर एवरेज, आवर जॉब, आवर ड्यूटी, ऑफ सेक्रेड जॉब।
न्यू कोर वैल्यूज फैकल्टी के लिए क्या आई हैं, काइंडली जरा गौर से सुन लें इसे। नंबर 1, पैशन ऑफ टीचिंग, पैशन ऑफ लर्निंग, पैशन ऑफ मेकिंग रिसर्च, हर किस्म का पैशन आपके पास होना चाहिए। इंटेग्रिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्चा देखते हुए, पर्चा बनाते हुए, क्वेश्चन पेपर डिजाइन करते हुए, कोर्स डिजाइन करते हुए, कोर्स को पढ़ाते हुए उसकी डेप्थ डिटरमिन करते हुए अकॉर्डिंग टू स्कीम ऑफ स्टडीज। प्लीज have this passion and integrity, the foremost important. We are lacking at the moment. अफसोस होता है जब कोर्ट में चीजें जाती हैं, इधर उधर जाती हैं, या कहीं मीटिंग्स हम देखते हैं, रियली वी फील अशेम्ड, हम क्या कर रहे हैं। मैं यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटेग्रिटी ये उसी डिस्कशन पे डिपेंड कर रही है, इधर यू आर रेडी टू चेंज योरसेल्फ और नॉट, उसमें ये आ रहा है। थर्ड वन, कमिटमेंट, जिसमें ओनरशिप भी आती है टू इंस्टीट्यूट, आपकी कमिटमेंट टू योर प्रोफेशन व्हिच यू हैव अडॉप्टेड योरसेल्फ टू यूनिवर्सिटी टीचिंग। प्लीज रिमेंबर, now you are a university teacher. Then comes teacher is a leader, ये न्यू डेफिनेशन बता रहा हूं। लीडर रोल मॉडल, ये टीचर है, छोटी चीज नहीं है जिसके बारे में हमारे इस्लाम का ये दुनिया टीचर को कितनी इज्जत देती है। देन ए फ्रेंड का मतलब उर्दू में वो यार करके हम फारक कर देते हैं, दोस्त करके। फ्रेंड हर किस्म की क्वालिटीज रखता है किसी इंडिविजुअल के साथ डील करते हुए, इज ए वेरी बिगर वर्ड, ठीक है। फ्रेंड बन जाएंगे आप टीचर के तौर पे तो यानी उनकी इश्यूज को, उनके चैलेंजेस को, उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेंगे। इशू, चैलेंजेस, प्रॉब्लम, ये डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट वर्ड्स हैं। एंड देन नेचरिस्ट, ये भी आपको पता है क्या मीनिंग है। एंड दैट इज दी challenges are always there in your life. One makes a lot of mistakes and fail time and time again, but don't let this discourage you. ये मेरा मैसेज है आपको कि challenges, मैं रिपीट कर रहा हूँ, always there in your life. लाइफ है तो challenges मौजूद हैं। खुदा से दुआ किया करें कि आप इतने कैपेबल हो कि आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकें। बीइंग ए यूनिवर्सिटी टीचर, अगर आप ये रोल प्ले नहीं करते, यू हैव टू बी आंसरेबल, not only towards society, towards your conscience, but towards God Almighty. Challenges are always there in your life. One makes a lot of mistakes and fail time and time again, but don't let this discourage you. आप नेगेटिव ना हो जाए, नेगेटिव एनवायरनमेंट में ना चलेंगे प्लीज। ये मैसेज है जो मैं आपको आज देना चाह रहा था। और failure teaches us life's greatest lesson and often shows us a better way of doing things. ये failure के साथ रिलेटेड है। Don't ever let failure get you down. Everyone fails, even your biggest heroes have all failed at some point. जिनको आप हीरो समझते हो वो भी किसी पॉइंट पे फेल जरूर हुए हैं, बट लुक व्हाट दे अचीव्ड इन द एंड। पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव बिहेवियर से they have achieved those objectives. Find your passion, go out there and grab at them with both hands. Life is for living and try to enjoy every day. इंजॉयमेंट में आपकी ड्यूटी इन पॉइंट्स पे अगर आप करते हैं तो यू विल फील इंजॉयड। आप इंजॉय फील करेंगे अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हुए, बिकमिंग ए गुड एंड रियल टीचर। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैसेज, अप्रिशिएट द नीड्स फॉर कांस्टेंट रिन्यूअल। कांस्टेंट रिन्यू करें, अपनी अप्रिशिएट करें नीड्स को। देन टू बी रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड, ये तभी होगा जब आप में लर्निंग का शौक होगा। एंड टू मूव बियॉन्ड योर अचीवमेंट सक्सेस, ये बहुत वर्ड है कि आप गरूर में ना आ जाएं, उतने हम्बल हो जाएं, उतने सबमिसिव हो जाएं, उतने लर्निंग और करें जब आप अपनी अचीवमेंट सक्सेस, जैसे हम जैसे लोग, अल्लाह का शुक्र है, whatever we did according to our own aims and objects and conscious. So we should move beyond, we should be able to transfer those things as I am trying. या कमीशन के जरिए आपको ये कहा जा रहा है कि अच्छे अच्छे दोस्त और भी कोलीग्स आएंगे जो आपको लेक्चर देंगे। लिसन इन दैट पैशन, कि वो अपना शेयर कर रहे हैं आपसे। ये नहीं कि वो क्या थे, वो ऐसे नहीं, क्या रहा है। हमारा तो इस्लाम कहता है कहने वाला नहीं, सोचे क्या कह रहा है। टू मूव बियॉन्ड योर अचीवमेंट्स एंड सक्सेस, एंड दैट इज, थैंक यू।